Good evening, everybody, ladies and gentlemen, and welcome to this workshop on the Cinematography Amendment Bill. We are gathered here today to discuss and deliberate upon the proposal amendment that hold significant applications for the Indian film industry. To kick off this event, let me welcome on the stage Mr. Jiten Parikh, Anand Doshi, and Mr. Arpit Singhal. Please, sir, come on the stage. Let's welcome with. आज की ये शाम के जो की पर्सन है, जो गुजरात स्टेट यहाँ की जो हमारी टीम है गुजरात की, वहाँ के जो की पर्सन है उनमें से आनंद दोशी जी और जीतेन परीख जी, जिनकी वजह से आज का ये इवेंट पॉसिबल हुआ है. लेट मी इंट्रोड्यूस यू आवर rest of the team member from Gujarat. Mr. Piyush Solanki. Please come on the stage, Mr. Piyush Solanki. He is our production head. I would like to come on the stage Ms. Archana Singh. She is our media and PR head. And I would like to introduce you myself. My name is Purvi Kamalan Trivedi, and I am associate with this MMIFF as a Gujarat Joint Secretary. Thank you so much. अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि MMIFF है क्या, तो उसके बारे में हमें अर्पित सर बताएंगे कि MMIFF है क्या. Thank you, and I welcome all of you here. I'm Arpit. I'm Executive Director for the Management of Events and Film Festivals in Pan India. So, MMIFF is Mentor and Mascot Indian Film Federation, which is present in 19 states in all India. And is it audible? Yeah. And eventually, we are also present in global, 6 to 7 countries outside India. And we are working for the people who are upcoming artists or existing artists in terms of who are present in industry. We have almost 7,000 members in Pan India, in across 19 states in India and globe. Eventually, thankful to the Gujarat team for hosting this in terms of the cinematography bill, and this is a recent updation which is done in the bills for the welfare of the society, and things needs to be updated. So we will be discussing further with the people on the panel. So MMIFF is into multiple things. So he is Jitendra Parashar ji on the screen. He is the chairperson of the organization. He is our patron, and like there are different things involved. So we are not specifically towards Bollywood or specific to a industry in which is very popular. We are talking about the Indian cinema. We are talking about the different film industries associated in the country. So it includes Bollywood, Tollywood, Mollywood, Sandalwood, Bollywood, Marathi film industry, Bengali film industry, Bhojpuri film industry. So we are like associated in all the industries, and we have like multiple members like actresses, celebrities, artists, technicians, and the people who are working at the back end as well as front end, those ways. So the organization encourages the youth to come up and present their activities or yeah their skills on terms of we do have multiple events in different locations in different states, like dance events, music events, film festivals. So you can showcase your talent, your
things, like if you have created any short movies, or if you are an artist, you can get associated with us, and you can get your support on those parts. So this is what basically the organization is, and the federation works on these people. We just try to encourage people who are a bit scared to come forward, in terms of like because of the wrong things which they listen to in the industry कि हाँ ये चीज़ें गलत होती हैं, ये चीज़ें सही होती हैं. So there are many myths in people's mind about what exactly the industry is. So we are here to help you guys on that part. If you guys come forward and want to go ahead in any sort of area in any of the fields, so you can connect with us, like the local team here or national team, wherever you wish to. So this is what exactly the organization is. Thank you very much. I would- Thank you so much. MMIF also international presence like US, UK, Australia, Canada, Dubai, Bahrain, Qatar, Malaysia, and many more. So here we have Mr. Jiten Parekh. He is a National Deputy Secretary of MIF. Jiten. Now we have Anand Doshi ji. He is a Gujarat State President from MIF. Archana Singh, Media and PR Head. अभी आज के समय में सोशल मीडिया और फिल्म्स लोगों के दिमाग पे और मानस पे बहुत ही ज़्यादा असर कर रहा है. उसी को देखते हम सोच सकते हैं कि वेब सीरीज़ भी कितनी चल रही है, OTT भी बहुत चल रहा है अभी, सीरियल्स. और वो जो दौर था रामायण महाभारत का वो कुछ अलग था, और आज का जो दौर है वो बिल्कुल अलग है, जिससे शायद यहाँ पे बैठे हुए जो सीनियर सिटीजन्स हैं दे कैन ईज़िली रिलेट. बट आज के जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए वो दौर समझना मतलब थोड़ा कठिन होगा. पर हमें आज भी याद है कि जब रामायण और महाभारत जैसे सीरियल आते थे तब जैसे कर्फ्यू लग गया हो वैसे माहौल होते थे. अभी वो पॉसिबल नहीं है, चाहे कितना भी वो मनी मैटर आ जाए कि बहुत ही ज़्यादा करोड़ में वो फिल्म्स कमाती है, पर वो दौर कोई नहीं ला सकता है. सो वो बिल्कुल जो लोग अग्री कर रहे हैं वो अपना Thank you. Thank you. Now I would like to introduce you. ये इवेंट जो पॉसिबल हुआ है इस पे स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर भूपेंद्र प्रसाद उपाध्याय फॉर हिज सपोर्ट एंड डेडिकेशन टू दिस कॉज. Moving to our national team, I would like to say something about the each and every distinguished guest who have joined us to share their valuable insights and expertise. Shri Jitendra Parashar. He is a chairperson of MIF, member of National Film Board of Canada, Montreal, Canada, member of the International Screenwriter Association, Los Angeles, California, member of the International Association of Innovation Professional USA. Mr. Subhash Sehgal. He is a chairperson of MIF Advisory Board, renowned film director and producer, chairman, National Film Awards, jury member of IATA and a Screen and Film Awards. Mr. Arpit Singhal, executive director. He is a film festival and event organization committee of MIF.
आज का ये जो समारोह है उनमें आनंद दोषी जी और जितेंद्र सर ने पूरे एफर्ट्स गुजरात की सारी टीम एक्टिव है पर ही दे आर द की पर्सन ऑफ दिस इवेंट. सो आई वुड लाइक टू जितेंद्र सर टू से समथिंग अबाउट द टुडेज इवेंट. Good evening, friends. I think I see big crowd over here. I am very much thankful to Ahmedabad Management Association to support us organizing this event over here. Sorry. MMIF, Mentor and Mascot Indian Film Federation, is helping in 19 states with 7,000 members, not in only in India, out of India, abroad, so many places. We are here to give platform in the name of art and culture to the drama person, to the dance person on the national level and the overseas level. We would like to have their talents. Let everybody have their talents to visualize, and we are here to give platform to them. Mr. Jitendra Parashar, he has done many events, festivals, and so many things, along with esteemed guests like Subhas ji, Ruchika ji, Vishal Mehra ji, all are over here. And I wish you will enjoy a good lines and good speech from them. If you have got any questions from within your minds, please share your questions with them and enjoy this evening. Thank you. We have with us Ms. Ruchika Agrawal, National Advisory of MIF, advisory and a jury member of a censor board at a Central Board of Film Certification, CBFC GOI, fashion designer, and she is a very good Kathak dancer too. Mr. Vishal Mehra, he is a vice president of Maharashtra team, head of the Eagle Films, project head, Max Player, exclusive producer of Tooth Pari on Netflix, associated with Endemol, Balaji Films, and Sony TV. I would like to invite all of our national team, Ms. Ruchika Agrawal, Subhash Sehgal, Jitendra Parasar, and Vishal Mehra sir, all come on the stage, please, sir.
अब हम सबसे पहले हमारे सारे डेलीगेट्स आ चुके हैं, तो उनके लिए बहुत सारी थालियों के साथ स्वागत करेंगे और जो हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति है दीप प्रागट्य वो करेंगे, क्योंकि दिया वो अंधेरों में रोशनी दिलाता है। तो आज के हमारे ये जो डिस्कशन है उसी पे ये लोग ही ज़्यादा रोशनी डालेंगे आज। सुभाष शेगल जी हमारे मोस्ट सीनियर और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है ये फिल्म इंडस्ट्री में। मेरी आज सुबह ही उनसे मुलाकात हुई और वी वर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गुड रोड। तो मुझे नहीं पता था कि गुड रोड के बारे में उन्हें इतना पता होगा। उन्होंने पूरी स्टोरी सुनी मेरी और लास्ट में बताया मैं उसमें ज्यूरी में था। So I'm so happy and glad to have you. Thank you so much, sir. मुझे एक बात बताओ, अभी एक ना नया एक कंटेंट आया है जिसका टाइटल है एक ही बंदा काफ़ी है। किसने नाम सुना है वो? तो आप तो इतने सारे बैठे हुए हो, थोड़ा सा तालियां, थोड़ा सा एग्रेशन थोड़ा सा दिखेगा ना, तो आगे की जो बात अभी होने जा रही है वो थोड़ा सा इफेक्टिव रहेगा उसमें। सबसे पहले जो हमारे गेस्ट है, थैंक यू सो मच। अभी जितेंद्र पराशर सर है, वो हमें मिफ के बारे में थोड़ी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे। मतलब वो थोड़ा अभी दीप प्रागट्य हुआ है तो थोड़ा और प्रकाश उस पर डालेंगे। हाँ वही। मैं सबसे पहले सबको हाय बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कहा थोड़ा सा एक कैजुअल अब शुरुआत हो, थोड़ा सा लगे कि हाँ अपनापन है, हम लोग दूर से नहीं आए, दिल्ली से नहीं आए, हम भी गुजराती ही हैं। देन यू शुड स्टार्ट इन गुजराती। मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ आती है, केम छो केम छो केम छो। अब आया ना, लगा हाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। सर जो पीछे बैठे हैं वो भी आगे आ जाइए, कोई प्राइवेट बात हो रही है तो बताना, मैं भी आ जाऊँगा। अब टाइम की भी थोड़ी सी कमी है, और जैसे मैंने बताया कि एक बंदा काफ़ी है, तो आप बहुत सारे लोग आए हुए हो, तो अब शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले फिल्म फेडरेशन के बारे में बताना चाहूँगा। बेसिकली फिल्म फेडरेशन क्या है कि ये बनने की कहानी क्या है मैं बताता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत का नाम सबने सुना होगा, और जो हुआ वो भी सबने देखा होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा। जिस टाइम पे ये सब चीज़ें हो रही थी, नेपोटिज्म करके एक वर्ड आया था बहुत ज़्यादा, हम लोगों के पास भी आता था, और हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स आते थे। मैं बड़ों के बाद में जाऊंगा, पहले क्या था कि बहुत सारे यंगस्टर्स आते थे जो कि
जो फिल्म इंडस्ट्री है, चाहे वो कोई भी सेगमेंट की हो, बेसिकली 10 फिल्म इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर में, जो अभी स्लाइड्स में हमने थोड़े टाइम पहले देखा था। हर कोई दरवाज़ा खटखटाता है, अगर मैं बात करता हूँ कि 1000 दरवाज़ा खटखटाता होगा तो एक बंदा उसमें एंटर होता है। बाकी लोगों का क्या होता है वो किसी को नहीं पता। कुछ लोग मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग आगे जाते हैं, कुछ लोग कुछ टाइम के बाद वापस आ जाते हैं, और कुछ लोग स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। पर जो कंटिन्यू लगे रहते हैं, हम लोग ऐसे लोगों को पिक करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। जैसे जैसे उनको काम मिलना शुरू होता है, उनको लीगल एडवोकेसी देते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट से लेके उनकी फर्स्ट पेमेंट आने तक हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं। ऑडिशंस में भी, कास्टिंग में भी, काम दिलाने में भी। टेक्नीशियंस, ना कि सिर्फ आर्टिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी टेक्नीशियंस हैं जो जिस फील्ड में हैं, हम लोगों की कोशिश रहती है। मेरा क्या है कि जो हम एक इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं अपने मेंबर्स के लिए, जो हम कास्टिंग्स वगैरह में हमारी वर्कशॉप्स वगैरह लगती हैं, मेरा बेसिक क्वेश्चन एक होता है, फिल्मों में किस किस ने जाना है, तो सबके हाथ खड़े हो जाते हैं। सेलिब्रिटी किस किस को बनना है, सबके हाथ खड़े हो जाते हैं। फिर मेरा एक क्वेश्चन आता है, शाहरुख खान या नवाजुद्दीन सिद्दीकी या इरफान खान? 90% जनता बोलती है शाहरुख खान। मैं कहता हूँ सॉरी सर, आप लोगों की एंट्री थोड़ी मुश्किल से हो पाएगी। पहले शुरुआत करते हैं इरफान खान से, नवाजुद्दीन सिद्दीकी से। आप वहाँ तक जब पहुँचते हो, फिर आपको धीरे 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 करके ही उस मुकाम तक आप पहुँच सकते हो। तो हम लोग फिर उनको विंडोज़ दिखाते हैं कि आप पहले एड फिल्म्स में आइए, छोटे छोटे कंटेंट्स में आइए, यूट्यूब पूरा भरा पड़ा है, OTT भरा पड़ा है, वेब सीरीज़ हैं, आप उसमें काम करना शुरू करिए। जब लोग पहचान बनाना शुरू करेंगे, आपके यहाँ से प्रतीक गांधी हैं, आज की डेट में एक रेनॉल्ड नाम है, चाहे वो स्कैम कर आए हों, ठीक है ना, स्कैम से ही वो हिट हुए। आज की डेट में उनको काम मिल रहा है और काफ़ी काम मिल रहा है। मैंने एक फिल्म के लिए उनको अभी बात करी थी, मेरे को 3 साल के बाद की डेट मिली है। अब हम उनका रिप्लेसमेंट देख रहे हैं, क्योंकि हमें दिसंबर से वो फिल्म स्टार्ट करनी है। तो इस तरीके से क्या है कि छोटे छोटे सपने करके अगर आप बुनते रहोगे ना, वो एक सीढ़ियाँ बनती जाएंगी। तो वो चीज़ हम आपको करने का काम करवाते हैं, उसमें हम आपको सपोर्ट करते हैं। और जब हमने स्टार्ट किया था, नेपोटिज्म वर्ड बहुत ज़्यादा चल रहा था। आज की डेट में हमें नहीं लगता कि अगर आप राइट पाथ पे हो तो आपको अपना रास्ता बना लोगे। ऐसा कोई मतलब कि कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यार मेरे को यशराज में ही काम करना है। छोटे छोटे प्रोडक्शन हाउस भी हैं। मेरे साथ विशाल भाई बैठे हुए हैं। विशाल भाई ने भी बहुत सारी मेहनत करी है। विशाल भाई को जितना मैं जानता हूँ, बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ इन्होंने काम किया, सोनी लिव के साथ काम किया, नेटफ्लिक्स के साथ काम किया। ईगल फिल्म्स का नाम छोटे से लेके बड़े तक सर आपने भी सुना होगा ईगल फिल्म्स का नाम। ईगल फिल्म के वन ऑफ दी ऑनर है सर। सुभाष सर काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, जिसे कहते हैं ना नवरत्न, हमने पहले 9 रत्नों को जोड़ा। करते 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 आज की डेट में हम लोग 19 राज्यों में वर्किंग हैं, 8 कंट्रीज़ में वर्किंग है। पूरी ग्लोब में 7200 से ज़्यादा हमारे मेंबर्स हैं। आपके उसमें छोटे आर्टिस्ट से लेके, टेक्नीशियन से लेके, बड़े आर्टिस्टों से लेके, पॉलिटिशियन से लेके, उनके बच्चों से लेके, कॉर्पोरेट हाउसेज। गुजरात की अगर मैं बात करता हूँ तो हल्दीराम बहुत फेमस है, बीकानेर बहुत फेमस है, यहाँ पे भी ये लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से आज की डेट में हमारे साथ 38 कॉर्पोरेट हाउसेज भी जुड़े हुए हैं। तो धीरे 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 करके हम कर रहे हैं। हमारा एक वर्कशॉप होती है जिसका नाम होता है स्किल डेवलपमेंट इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। 3 महीने का कोर्स होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके हम लोग 6 कंटेंट्स के ऊपर काम करते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, फिल्म मेकिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, उसके अलावा कंटेंट राइटिंग पे कि किस तरीके से कंटेंट होता है। पर एक अग्नि परीक्षा होती है 3 क्वेश्चनों की, वो जो पार कर जाता है उसको हम अपने ट्रेनिंग शेड्यूल में बुलाते हैं। और वो ट्रेनिंग शेड्यूल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। और उसके बाद में 6 महीने की इंटर्नशिप कराते हैं। और जब वो इंटर्नशिप क्लियर कर जाता है, फिर हम उसको आगे प्रोडक्शन हाउसेज में काम करवाने के लिए भेजते हैं। तो ये सब चीज़ों जो है फिल्म फेडरेशन करती है। आप अब गो थ्रू करोगे अगर वेबसाइट को या हमारे प्रेजेंटेशंस को, वहाँ पे आपको पूरा ब्रीफली मिलेगा। थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे हाँ जी सर बताइए। सर नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मेरे घर में 4 बच्चे हैं, चारों के चारों फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। अब मैं कोई फिल्म कर रहा हूँ और मेरे पास एक बंदा आ रहा है, मुझे मालूम है टैलेंटेड है, ये काम कर सकता है, पर मैं क्या करूँगा, मैं अपने रिश्तेदारों को, यारों दोस्तों को, बाकी लोगों को फेवर करूँगा, उसको दबाऊँगा। वो होता है सर नेपोटिज्म। और नेपोटिज्म की कई अलग 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 बेसिस पे जाएंगे ना जब आप, तो अलग 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 उसकी व्याख्या बदलती रहती हैं। मैंने सिर्फ एक बेसिक आपको बताया। टेक्नीशियंस की भी अगर मैं बात करता हूँ, आप शायद फोटोग्राफर हैं या कोई भी अलग अलग फील्ड में है, या कोई डायरेक्टर है। डायरेक्टर बहुत अच्छा है, काम उसको बहुत अच्छा आता है, पर मेरे पास एक सोर्स आ गई कि सर इसको करवाओ, मेरे पास एक फेवर आ गया कि सर ये करवाओ आपको ये मिलेगा। मैं क्या करूँगा यार, टैलेंट को ख़त्म कर दूंगा, मैं उसको आगे ले आऊँगा। तो हर चीज़ में अलग 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 पैरामीटर्स हैं नेपोटिज्म को लेके सर। बिल्कुल सर।
इसमें क्या है कि कुछ लोग निकल के नगीने भी आते, जैसे नाना पाटेकर सर आए, ठीक है, अभी मैंने नाम बताया, इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आपके यहाँ से प्रतीक गांधी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में अपना 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 नाम इंडिविजुअल लेवल पे बना रहे हैं। तो वो भी चीज़ अब हटती जा रही है धीरे धीरे करके। थैंक यू। Thank you, sir. जी जी इंटर्नशिप क्या होता है बेसिकली कि आप जैसे भी ड्रामा के स्टूडेंट, आप थिएटर कर रहे हैं, हमारा क्या होता है कि हमारा अलग अलग स्टेट्स में हम लोग प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। वो प्रोग्राम 3 महीने का रहता है। हमारी जो सबसे पहला उसमें क्वेश्चन ये होता है कि भाई 3 महीने तक आपको कंटिन्यू क्लास में आना है। जिस दिन आप 3 क्लासेस कंटिन्यू मिस कर गए, हम आपको बाहर कर देते हैं। क्या आप कर सकते हो? आपका क्वेश्चन में होता है यस। हमारी जो क्लास होती है वो 3 घंटे की क्लास होती है। उसके बाद 6 घंटे आप प्रैक्टिस के लिए दे सकते हो, अगर आपका यस है, इन नो। तीसरी चीज़, जिस दिन आप हमारे यहाँ से ट्रेनिंग पूरी करके जाते हो, उसके बाद आपको 6 महीने हमारे यहाँ पे इंटर्नशिप करनी है। टाइमिंग्स हमारे रहेंगे, क्योंकि हमें क्या है, जैसे वो कहते हैं ना, सोने को तपाना पड़ता है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ वो लोग जुड़ें जो हमारे साथ लॉन्ग टर्म चल सकें। तो हम लोग क्या करते हैं, जब 6 महीने दिखते हैं हमें क्या ये लड़का मेहनत कर रहा है, फिर हमारी जो ऑडिशन और कास्टिंग टीम है वो उसके ऊपर मेहनत करना शुरू करती है। और ऑब्वियसली हिंदुस्तान के अंदर जो भी चीज़ फ्री में मिली है उसका बेड़ा गर्क ही हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम एक नॉमिनल चार्जेस रखते हैं। वो चार्जेस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ट्रेनिंग में कोई चार्जेस नहीं है। जिस दिन आपको पहला काम मिलेगा सर, उसका 30% शेयर हम रखेंगे, क्योंकि आपके जैसे और जो दूसरा बंदा आएगा हम उसके ऊपर यूटिलाइज करेंगे। क्यों? ट्रेनर की कॉस्ट है, इक्विपमेंट्स की कॉस्ट है, ऑडिटोरियम की कॉस्ट है, सेमिनार हॉल्स की कॉस्ट है, इनफैक्ट एक कॉन्फ्रेंस रूम ले रहा हूँ उसकी कॉस्ट है। तो वो कॉस्टिंग सारी की सारी वहाँ से बेयर होती है। आपको जिस दिन आपका पहला चेक मिलेगा, हम आपसे बोलते हैं कि सर 30% डोनेशन हमारे फेडरेशन के अकाउंट में डालिए आप, उसका भी आपको 80G बेनिफिट मिलता है। तो ये चीज़ है जी। सर गुजरात में अभी क्या है कि आज हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है गुजरात में, और गुजरात में अभी हम टीम डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें हेल्पिंग हैंड्स चाहिए काम आगे प्रोसेस करने के लिए। तो अभी 5 लोग जो हैं, हमने अभी नई टीम डेवलप हुई है, तो 5 लोगों को अभी हमने चिन्हित किया है। वो धीरे 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 करके अब आगे बढ़ेगा, और मेरे को उम्मीद है अगली बार जब हम आएंगे तो हमें भी 10 दिन बाद ही आप बुला लोगे हमें। जी जी सर बिल्कुल सर, इसलिए आज हम गुजरात में एंटर करे हैं कि गुजरात जो है, गुजरात को हम करेंगे। आनंद दोषी जी हैं, उन सर को हमने कमान दे रखी है। अब तीर और कमान दोनों उनके हाथ में है, ठीक है ना। तो कुछ भी कनेक्ट चाहिए, सिंगल पॉइंट कांटेक्ट है आनंद दोषी जी। आनंद दोषी जी से आप कांटेक्ट कीजिए, आप जुड़िए साथ में। जैसे जैसे टीम बनेगी वैसे वैसे फिर हम प्ले करेंगे उसको, और हम लोग भी आते रहेंगे। जी सर। जी हाँ सर, हम ऐसे नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, बैच बनाते हैं, और 30 बच्चों का बैच होता है। मतलब कि बच्चे इन द सेंस 16 साल से लेके ऊपर की कोई एज लिमिट नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं दिल तो बच्चा है जी। तो 70 साल का बुजुर्ग भी अगर हमारा आ रहा है तो हमारी तो इंडस्ट्री ऐसी है कि हम पिताजी का रोल दे सकते हैं। तो वो चीज़ है सर। जी सर। हाँ, तो अभी वी कम टू द पॉइंट, इम्पॉर्टेंट वर्कशॉप ऑन द सिनेमाटोग्राफी अमेंडमेंट बिल। तो I would like to request Ms. Ruchika Ji Agrawal. She will say something about this particular amendment bill. नमस्कार, वंदे मातरम आप सबको। पहली बात तो मैं जितने भी ऑडियंस हैं उन सबसे पूछना चाहूँगी, किसी को थोड़ा बहुत पता है सिनेमेटोग्राफी एक्ट के बारे में? कुछ जानते हैं आप लोग? कुछ नहीं। ओके। आप लोगों ने ये देखा है कि जब हम सब सर्टिफिकेट लगता है, एक मूवी शुरू होती है, मूवी से पहले एक सर्टिफिकेट लगा होता है जिसके ऊपर ड्यूरेशन लिखी होती है। पहले लिखा होता था कितनी रील्स की है मूवी, और उसमें प्रोडक्शन हाउस का नाम और डिटेल्स थोड़ी लिखी होती हैं। उसके अंदर एक साइड में लिखा होता है सर्टिफिकेट कौन सा मिला है इस मूवी को। यू मिला है, UA मिला है, A मिला है। वो आप लोगों ने सबने देखा होगा मेरे ख्याल से।
जी देखा है ना। तो सिनेमेटोग्राफी एक्ट जो है वो उसी से कंसर्न्ड है कि जिस पे हम सारा हमारी जो गाइडलाइंस होती हैं, जो हम CBFC जो आप सुनते होंगे ना, सेंसर बोर्ड ने सीन काट दिए, सेंसर बोर्ड ने गाना काट दिया, कुछ लोग बड़ा गालियाँ भी देते हैं, अरे सेंसर बोर्ड तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है और क्रिएटिव फ्रीडम की भी बात होती है। बट हम उससे पहले किन गाइडलाइंस पे काम करते हैं वो सिनेमेटोग्राफी एक्ट है। उसके अंतर्गत CBFC ये गाइडलाइंस के हिसाब से एक सर्टिफिकेट हर मूवी को प्रोवाइड करती है कि वो पब्लिक व्यूइंग के लिए कितनी एलिजिबल है और किस टाइप की पब्लिक व्यूइंग के लिए एलिजिबल है। उस चीज़ का काम वो जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सिनेमेटोग्राफी एक्ट करता है। मैं अब आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में ब्रीफ दे देती हूँ। ये 1952 का एक एक्ट है, सिनेमेटोग्राफी एक्ट है। उसके बाद जून 1983 में इसके अंदर पहले सिर्फ 2 कैटेगरीज हुआ करती थी। जब हम 52 में था, 52 में सिर्फ 2 कैटेगरीज हुआ करती थी, U और A। U का मतलब होता है यूनिवर्सल व्यूइंग कि कोई भी देख सकता है। A का मतलब होता है एडल्ट व्यूइंग विच इज़ 18 ईयर्स एंड अबव। उसके बाद जून 1983 में 2 और कैटेगरीज इसमें इंक्लूड की गई विच इज़ UA एंड S। तो UA का मतलब हुआ अंडर एडल्ट गाइडेंस, कि जब भी जो मूवी चल रही है, जो बच्चे हैं वो जब बैठ के देखें तो उनके साथ उनका पेरेंट्स, उनके गार्जियंस, कोई ना कोई एडल्ट होना ज़रूरी है। तो वो UA सर्टिफिकेट होता है। और एक स्पेशल कैटेगरी का मतलब है S में हो गया जो कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स के हिसाब से बनी है, कुछ सिर्फ इंजीनियर्स के हिसाब से बनी है, कुछ सिर्फ साइंटिस्ट के हिसाब से बनी है, तो वो S कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। उसके बाद 1995 में एक केबल टेलीविज़न रेगुलेशन एक्ट आया, उसके अंदर जिसमें टेलीविज़न पे अगर आपको मूवीज़ दिखानी है तो सिर्फ UA और UA ही दिखा सकते हैं, क्योंकि उससे पहले तो हम लोगों ने कभी केबल देखा ही नहीं था। 95 से पहले हम लोगों को पता ही नहीं था कि केबल ना भी कोई चीज़ होती है। वो कुछ दूरदर्शन आता था बस टीवी पे, हम लोग कृषि दर्शन, चित्रहार, सैटरडे संडे मूवीज़ आती थी, वो हम सब देखते थे। लेकिन उसके बाद केबल जब आया तो केबल पे हमारे 1-2 चैनल्स के साथ आज हमारे पास मेरे ख्याल से दर्जनों क्या सैकड़ों चैनल्स हैं जो हम देखते हैं। इस वजह से 1995 के बाद एक केबल वालों के लिए एक अलग से कुछ कैटेगरीज ऐड करी गई, जिसमें पहले U और सिर्फ UA की ही हम दिखा सकते थे, उसके अलावा कोई हम अडल्ट कंटेंट नहीं दिखा सकते थे। फिर 2019 में 2019 में जब 370 जब हटाई गई कश्मीर में उससे पहले थिएटर बंद थे, थिएटर में मूवीज़ नहीं देखी जा सकती थी, वहाँ अलाउड ही नहीं थी क्योंकि इतना सेंसिटिव माहौल था कश्मीर का। 2019 में जब 370 हटाई गई और 370 हटने के बाद अब वहाँ पर थिएटर लगातार फिर से काम हो रहे हैं और अब फाइनली वो स्टेज बारी आ गई है कि पूरे भारत में हम एक ही सिनेमेटोग्राफी एक्ट के हिसाब से सिनेमा काम करता है और सिनेमा इंडस्ट्री जो है वो उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से काम करती है। और हम दिल्ली में बैठ के मूवीज़ देख रहे हैं वो हम कश्मीर में भी देख सकते हैं, पहले वो पॉसिबिलिटी नहीं थी। सो अब एक स्टैंडर्ड सिस्टम हो गया है ऑल ओवर भारत। फिर अब 2023 में एक नया अमेंडमेंट आया है जिसके अंदर जो UA और A और S जो कैटेगरी थी उसके साथ जो UA कैटेगरी है उसके अंदर 3 चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। पहले ये था कि सिर्फ UA में 12 साल के बच्चे जो हैं UA कैटेगरी में 12 साल से छोटा बच्चा अगर मूवी देखेगा तो उसे पेरेंटल गाइडेंस की ज़रूरत है। अब वो 12 साल की जगह अब 3 चीज़ें कैटेगरीज में ऐड कर दी गई हैं, 7 साल के बच्चे के लिए, 12 साल के बच्चे के लिए और 16 साल के बच्चे के लिए। 16 साल का बच्चे की अलग कैटेगरी हो गई, 12 साल का अलग कंटेंट हो गया और 7 साल के लिए अलग कंटेंट हो गया, जिससे कि अब एक साथ यूनिफॉर्म नहीं रह सकता क्योंकि 7 साल का बच्चा कुछ समझ सकता है और 12 साल का बच्चा उससे कहीं ज़्यादा समझ सकता है। तो उसके लिए एक अलग उनको 3 कैटेगरीज और ऐड कर दी गई हैं। अब उसके बाद अब हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं हम इन कैटेगरीज को उसके अंदर देते रहते हैं और साथ में कुछ जब हम सेंसर सर्टिफिकेट्स भी देते हैं तो उसमें क्या होता है
किसी को ऑब्जेक्शन है, कुछ है, तो कोर्ट में जाने की कहते हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे। पहले क्या था, कोर्ट में नहीं जा सकते थे क्योंकि इतने सारे एक्ट्स थे। एक सिनेमेटोग्राफी एक्ट के अलावा कॉपीराइट एक्ट भी था, केबल टेलीविजन रेगुलेशन एक्ट भी था, और फिर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट भी था। तो उसमें क्या था कि सब चीज़ें, कोर्ट इतने सारे चीज़ों के साथ काम नहीं कर सकता था। अब क्या हुआ है, अब सारे के सारी चीज़ें जो आईएनबी मिनिस्ट्री के साथ दे दिया गया है, उनको पूरा का पूरा एक सबको एक साथ मिला दिया गया है कि सब ये एक साथ मिलके अब आप एक यूनिफॉर्म सिनेमेटोग्राफी एक्ट के साथ काम करेंगे। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन होता है तो CBFC ही उसके अंदर कोई अगर सर्टिफिकेट दिया जाता है, और अगर किसी प्रोड्यूसर को अगर इशू होता है, वो सर्टिफिकेट जो मिला है उससे अगर इशू होता है तो वो CBFC में रीअप्लाई करते हैं कि हमें रीअप्लाई करना है। रीअप्लाई करने के बाद जिस तरह से पहले कुछ लोग बैठ के उस मूवी की स्क्रीनिंग करी होती है, उसको उसमें प्लस माइनस करने के लिए, सीन्स काट करने के लिए या एडिट करने के लिए या चेंजेस करने के लिए जो एडवाइस किया होता है और सर्टिफिकेट देने की बात करी होती है, अगर प्रोड्यूसर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसके बाद वो रिवाइजिंग कमेटी में जाता है। रिवाइजिंग कमेटी में जाने के बाद भी अगर फिल्म मेकर उससे खुश नहीं होता तो ट्रिब्यूनल कोर्ट है। तो अब सब चीज़ें सेंट्रलाइज कर दी गई हैं। सो बेसिकली ये काम सिनेमेटोग्राफी एक्ट के अंदर हुआ है, जो अमेंडमेंट बिल आया है 2023 में। मेरे ख्याल से मैं काफ़ी कुछ चीज़ें तो समझा चुकी हूँ। अब आप लोग अगली बार जब सर्टिफिकेट देखेंगे मूवी से पहले, तब आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं और सर्टिफिकेट जो दिया गया है उसका मतलब क्या है। एक चीज़ और है, अगर हम अगर थिएटर में अगर कोई मूवी लगती है और उसकी कोई भी कैटेगरी है, लेकिन अगर उसे टेलीविज़न पे, हमारे इतने केबल कनेक्शंस हैं उन पे अगर टीवी पे अगर आना है तो, और अगर यू कैटेगरी नहीं है तो उसको दोबारा से रिवाइज़ करवाना पड़ता है फिल्म मेकर को, जिससे कि वो टीवी पे आने के लिए यू कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो जाए। तो उसमें कुछ कंटेंट अगर ऐसा होगा जो उसमें हटाने की ज़रूरत है। कितनी बार कुछ मूवीज़ ऐसी भी होती हैं जिनको ज़्यादा वायलेंस की वजह से भी दे दिया जाता है, नॉट जस्ट अबाउट द न्यूड कंटेंट, बट वायलेंस की वजह से भी उनको कैटेगरी दे दी जाती है। और अगर फिल्म मेकर ये चाहते हैं कि वो कंटेंट या वो मूवी केबल पे, हमारे जो ये चैनल्स हैं उन पे आए, तो उनको फिर से उस पर रीवर्क करके वायलेंस को कम करके उसको फिर से वापस देना पड़ता है सर्टिफिकेट के लिए, जिससे कि वो फैमिली व्यूइंग के लिए घर बैठे देख सकें। तो उसमें काफ़ी काम करना पड़ता है फिल्म मेकर को, नो डाउट, और CBFC को भी मेहनत हो जाती है एक ही कंटेंट को दोबारा देखने के लिए। बट ये सब ऑडियंस के बेटरमेंट के लिए है, जिससे कि उनको राइट कंटेंट मिल सके और हम लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होके उस चीज़ को देख सकें। थैंक यू सो मच। अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो मुझे बता दें। हाँ जी। ठीक के हिसाब से एंटी पायरेसी के बारे में बात हो रही है, पर क्या एंटी पायरेसी मतलब पायरेसी रुक रही है ग्राउंड लेवल पे? पायरेसी फिल्म भी है ही घर। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एकदम से जिनको ख़त्म नहीं किया जा सकता, बट बहुत कंट्रोल कर लिया गया है। मैं छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ। पहले क्या होता था, हम लोग वीडियो कैसेट्स के ज़माने के हैं, वीडियो कैसेट से कॉपी कर करके चली जाती थी, या फिर थिएटर में बैठ जाते थे लोग अपना कैमरा लेके और उससे रिकॉर्ड हो जाती थी। आज की तारीख में वो काम नहीं हो रहा है। वो काम इसलिए नहीं हो रहा है कि सब लोगों को ये पता चल गया है कि अगर मूवी थिएटर में अगर आती है तो 1 महीने बाद आपको किसी ना किसी और प्लेटफॉर्म पे नज़र आ जाएगी। तो पायरेसी एक तो उस वजह से भी कंट्रोल हुई है, और बाकी इधर वैसे गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है और काफ़ी हद तक उसे कंट्रोल किया गया, बट धीरे धीरे पूरा ख़त्म हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ जी। अभी क्या है, जो ये अमेंडमेंट बिल आया है, पहले कोई प्रावधान नहीं था उसमें। पहले क्या था, आप 2 महीने 3 महीने में बेल लेकर आ जाते थे बाहर, 5,000 रुपये का जुर्माना लगता था बस। अब क्या, आप थिएटर में बैठ के अपना मोबाइल से अगर आप कॉपी कर रहे हो उसको, 3 महीने से लेके 3 साल तक की सज़ा है। और मान लो वो मूवी 100 करोड़ रुपए की है, तो उसका 5% का जो रेवेन्यू है, प्रोडक्शन रेवेन्यू है, यानी कि 5 करोड़ रुपया वो आपसे ले लिया जाएगा। और अगर आप कैपेबल नहीं हो तो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी जब्त कर लिया जाएगा। तो धीरे धीरे करके कानून बन रहे हैं, कानून को इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है और सज़ा भी हो रही है। तो धीरे धीरे करके ये चीज़ हट रही है। पहले पायरेसी का क्रेज़ बहुत ज़्यादा था। रीज़न क्या था, फिल्में बहुत लंबी चलती थी
और बहुत सारी फिल्में होती थी उस टाइम पे, डीवीडीज थी, सीडीज थी, सब चीज़ें थी। आज की डेट में कोविड के बाद से जब हमारा ये OTT प्लेटफॉर्म्स चलने शुरू हुए, तो जो फिल्म मेकर्स हैं, फिल्म मेकर्स का भी एक अप्रोच क्या रहता है कि मैं थिएटर पे जाऊँ, थिएटर में फिल्म सक्सेसफुल करके मैं OTT पे जाऊँ ताकि डबल कमाई हो सके। तो धीरे धीरे करके वो चीज़ें चेंज हो रही हैं और अब तो प्रावधान आ गए हैं, पेनल्टीज़ के भी आ गए हैं, प्लस क्या कहते हैं ज्यूरिडिक्शन प्रावधान भी हैं उस पर, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर वर्कआउट कर रही है। सर पर स्टिल ओटीटी पे आने के बाद भी पायरेसी तो है, मतलब हाँ, पायरेसी है अभी इस टाइम पे। अगर आप बात करें जैसे टॉरेंट है, टेलीग्राफ है, उस पर जाके आप लिंक पे देख सकते हो, कोई वो दिक्कत नहीं है, पर उतना इजी सर्च नहीं है आज की डेट में। मैं एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि हम लोग हर चीज़ पे वर्क करते रहते हैं। आप अभी यूट्यूब खोलो, यूट्यूब पे एक फर्जी जो भी वेब सीरीज़ आई थी, मुझे निकाल के दिखा दो, कहीं नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। इसी तरीके से और ऐसी 10 फिल्मों के मैं नाम बता सकता हूँ आपको, आप ढूंढोगे नहीं मिलेगी। रीज़न, जब से कॉपीराइट एक्ट आया है, IT एक्ट आया है, जो नए एक्ट्स आए हैं, जो प्लेटफॉर्म उनको दिखाएगा उसके ऊपर भी पेनल्टी है। तो क्या है कि वो खुद अपने सर्च इंजन में सर्च करते रहते हैं जगह जगह पे कि ऐसी कोई कंटेंट मिले ना मिले। सर पर ऐसे ढेरों वेबसाइट्स और ढेरों चैनल्स हैं जो फ्री में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं वही बता रहा हूँ ना, पहले हम अपने घर को तो ठीक कर लें, हमारा घर ठीक होगा तब हम बाहर वाले को देख सकते हैं, जैसे भी कनाडा का इशू चल रहा है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे करके वो चीज़ भी मैं जो सोच रहा हूँ ये है कि शायद 2024 में, 5 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, शायद 2024 में और कई जो अभी एक्ट्स आ रहे हैं, जो और बड़े बिल आ रहे हैं, जो और एनेक्स्चर्स आते हैं, जो एडजॉइंट हो जाते हैं करंट बिल के साथ, कुछ ना कुछ उस पर ऊपर भी आएगा। इनफैक्ट मैं अभी बात करूँ, 3 दिन पहले ही हमने जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को, सेंसर बोर्ड को और PMO को एक लेटर इशू किया है, एडवाइजरी एक दिया है कि सर आप OTT के ऊपर भी रोक लगाइए, साथ साथ में जो एंटी पायरेसीज हो रही हैं उसमें जो, जैसे आपने बताया, तो मेरे को 2 नाम इसलिए क्योंकि मैंने वो 2 नाम मेंशन करे हैं उसमें, जैसे टेलीग्राम और टॉरेंट। वहाँ से क्या है कि लिंक कॉपी करके आप उसको देख सकते हैं। तो ऐसे तरीके से हम लोगों ने उनको सजेशंस दिए हैं कि यहाँ से भी आपको कंटेंट मिल सकता है, तो वहाँ से भी उसको जो है वहाँ पे भी फुल स्टॉप और उनकी विंडो क्लोज करने की ज़रूरत है। उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट कैसे ये उसको रिसोर्सेज को यूज़फुल करती है, वो उन एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ। अनिल कपूर का एग्जांपल है लेटेस्ट। अनिल कपूर ने क्या किया, अपना सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर करी है। उसमें क्या है कि उनकी वॉइस, उनकी फोटोग्राफ और उनसे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट बिना उनकी टीम की रिटन परमिशन के बगैर आप पब्लिश नहीं करोगे। तो इसी तरीके से क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपका क्या कहते हैं कैनवा, और जितनी भी ऐसी हैं पिंटरेस्ट वगैरह, जितनी भी ऐसी वेबसाइट्स हैं, उन सबको एक एडवाइजरी जारी करी है कि जहाँ भी सर्च इंजन में अनिल कपूर का नाम आता है उसको कंटेंट को मॉर्फ कर दिया जाए। मॉर्फ करने का क्या होगा, आपको जो है सब्जेक्ट टू कॉपीराइट आ जाएगा उस पर लिखा हुआ, और नीचे कॉन्टैक्ट का आएगा वो। तो क्या है कि आपको टीम के साथ कंसर्न करना पड़ेगा, तभी आप वो फोटो डाउनलोड कर पाओगे। तो वो चीज़ वो कर रही है। और यूट्यूब मतलब कि जो हमारा गूगल है या जो गेटी इमेजेस है, उनको 3 महीने का टाइम दिया गया है वहाँ से वो चीज़ हटाने के लिए। तो वो चीज़ गवर्नमेंट काम कर रही है उसके ऊपर। उस तरह से जैसे अगर आप कभी इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे अगर आप कोई प्रोग्राम हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, कोई म्यूज़िक बज रहा है, अगर आप रिकॉर्ड कर लेते हो वीडियो, अगर आप अपलोड करते हो तो उसमें म्यूट कर देते हैं ना, वो कॉपीराइट एक्ट की वजह से कि म्यूट कर दिया गया, बिकॉज वो आप इस तरह से बिना उनसे परमिशन लिए आप नहीं पोस्ट कर सकते, क्योंकि आपका भी जो आप जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हो वो भी एक पब्लिक व्यूइंग हो गई, तो उनसे परमिशन लिए बिना आप नहीं डाल सकते। तो ये इन चीज़ों पे काम हो रहा है और धीरे धीरे हर चीज़ में टाइम लगता है। इतने सालों का अगर बिगाड़ है उस पर काम करा जा रहा है तो सब चीज़ें हो जाएंगी धीरे धीरे। एंड टू ऐड ऑन दैट, लाइक 2 साल पहले या 3 साल पहले इट वाज वेरी इजी टू फाइंड द कंटेंट। पहले मतलब वी जस्ट नीड टू, हम कोई भी मूवी या कोई भी चीज़ होती थी तो हम उसको सर्च करते थे और हमारे पास मल्टीपल लिंक्स होते थे डाउनलोड करने के, लेट्स से टॉरेंट से या टेलीग्राम से। देयर आर मेनी वेबसाइट्स। आज की डेट में अगर आप सर्च करते हो फॉर एग्जांपल टेलीग्राम पे, तो आप नॉर्मली अगर कोई मूवी का नाम डालोगे तो यू विल फाइंड मल्टीपल लिंक्स, बट वहाँ पे ऑथेंटिक डेटा नहीं आएगा। देयर आर मेनी वीडियोज़, मेनी थिंग्स। यूट्यूब पे भी अगर आप फॉर एग्जांपल कोई मूवी या पायरेटेड सर्च करते हो आज की डेट में, लाइक टॉकिंग अबाउट, तो इतनी आसानी से नहीं मिलती। यू नीड टू गो डीप, लाइक आपको सर्चेस में जाना पड़ेगा। वो इनिशियली पहले फर्स्ट 2 पेजेस में कुछ ना कुछ मिल जाता था, अब इट इज़ ऑन 23rd और 25th पेज। तो लाइक रिस्ट्रिक्शंस जो हैं पायरेसी के रिगार्ड्स में, जो आपका प्राइमरी क्वेश्चन था कि मतलब उसमें आ रही हैं स्लोली, उसमें फिर आप हार के ये बोलते हो कि हॉल पे देख लूँगा। तो लाइक इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑनलाइन, यू विल गो एंड बाय अ टिकट। इवेंचुअली लाइक
उसमें हेल्प करने के लिए पायरेसी के लिए, जैसे नेशनल सिनेमा डे होता है या कुछ ऐसा होता है, तो द टिकट्स आर ऑफ 75 रुपीज़, 99 rupees, 75 rupees. PVR goes for that. PVR in general, if I talk about charges ऊपर हैं, but there are specific days. Weekdays में हम बात करते हैं तो there are charges जो कम हैं. Weekend पे थोड़ा सा, because you know that everyone is earning on that part. एंड इवेंचुअली अगर आप बात करते हो तो फिर आज की डेट में PVR इज़ गिविंग मेनी थिंग्स के मतलब कॉम्प्लीमेंट्री रिफिल्स दे रहा है, वो सब चीज़ दे रहा है, वीकडेज में देता है. तो पायरेसी को रोकने के लिए इट इज़ नॉट ओनली द कंटेंट और समथिंग, ये चीज़ें ऐड ऑन में दी जा रही हैं सो दैट पीपल गो एंड एन्जॉय द प्लेसेज एज वेल. मतलब PVR एक एग्जाम्पल है, आइनॉक्स है, देयर आर मल्टीपल ब्रांड्स ऑन दैट पार्ट. कुछ पेमेंट गेटवेज भी हैं जो अगर आप ऑनलाइन अगर पेमेंट करते हैं तो 1+1 की भी टिकट्स दे देते हैं वो. तो वो सब एक फोरम, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस सिनेमा में पहुंच सके. और जब अफोर्डेबल टिकट्स मिलते हैं और एक बड़ी स्क्रीन का जो एक्सपीरियंस होता है वो तो अलग ही होता है, तो कोई क्यों मोबाइल पे या लैपटॉप पे देखना चाहेगा. तो वो पायरेसी अपने आप ही कंट्रोल होती है, कर्टेल होती है. मॉर्निंग शो सस्ते मिलते हैं, सस्ते हो जाते हैं, तो ज़रूरत पड़ती नहीं है इतनी. इसलिए हर चीज़ को अपने हिसाब से स्टेप बाय स्टेप सब पे काम करके वो इशू बिल्कुल कम्प्लीटली ख़त्म भी हो जाएगा. थैंक यू मैम. थैंक यू सर. एक कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन है ना कि थिएटर से ज़्यादा कंटेंट फ्लो OTT पे हो रहा है, तो आपको लगता है कि सेंसरशिप की ज़रूरत है? सर्टेन सेंसरशिप है OTT? जी, अभी उनको इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से अभी जो OTT प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट है वो सेल्फ सेंसरशिप पे है. अभी आप देखो, जब भी कोई कंटेंट अगर OTT पे आप देखोगे तो उस पर लिखा हुआ आता है कि वो एज ग्रुप भी लिखा हुआ होता है, और उस पर लिखा हुआ होता है कि ये एज ग्रुप के लिए क्यों अब्यूज़ हैं, ड्रग यूसेज है, वायलेंस है, वो सब लिखा हुआ होता है. और बाकी हमारी अपनी भी ड्यूटी बन जाती है कि हमारे घर में अगर बच्चे हैं वो क्या देख रहे हैं, हमें वॉच रखना ज़रूरी है. ये नहीं है कि उनको मोबाइल दे दिया, आईपैड दे दिया और आप फ्री हो गए. यू नीड टू कीप अ चेक कि बच्चे क्या देख रहे हैं, उनके ऊपर वॉच रखना ज़रूरी है. धीरे धीरे OTT प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट है वो भी सेंसरशिप में आ जाएगा, बट क्योंकि ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स इन्वॉल्व हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट होपफुली थिंग्स शुड वर्क आउट. बेसिकली हमारी फिल्म फेडरेशन ने भी 3 दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करी है इसी चीज़ के ऊपर कि OTT के ऊपर भी सेंसरशिप आए. क्योंकि क्या है, वो आज की डेट में मोबाइल फ़ोन हमारे बच्चे भी देख रहे हैं, और वो क्या उसको सर्च कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, कौन सा वो देख रहे हैं, वो पेरेंट्स नहीं देख पाते हैं. तो उसके ऊपर हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट भेजी है उनको. लेट्स सी. यही सवाल है मेरा कि कोरोना के बाद ज़्यादा ऑनलाइन एजुकेशन हो गया है, तो बच्चों के हाथ में मोबाइल देना ही पड़ता है और आ गया है. लोग पढ़ने के लिए ही मोबाइल यूज़ करते हैं, बट जो ऐड आती है, जो सेंट्रल आप लगा रहे हैं, मूवीज़ में लगा रहे हैं, OTT प्लेटफॉर्म पे लगा रहे हैं, पर ऐड जो आ रही है जो डिस्ट्रैक्ट कर रही है, स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर रही है. कई बार ऐसा होता है कि हम क्लिक नहीं भी करते हैं, फिर भी कोई कंटेंट आ जाता है. उसके लिए मैम उसके ऊपर भी हमने वो उसमें डाला है कॉलम में. इनफैक्ट हम लोगों ने एक कॉलम और डाला है क्योंकि हमारे घर में क्या है कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो सुबह सुबह क्या है भजन कीर्तन और ये सब चलाते हैं, तो उसमें क्या है कि नॉनवेज की ऐड आती है और मैक्सिमम आती है, या फिर कोई अल्कोहलिक ड्रिंक की या इस तरीके की कोई फालतू की एड्स आती हैं जो कि मॉर्निंग में वो नॉन एक्सेप्टेबल रहती हैं. तो हम लोगों ने वो भी एक रिक्वेस्ट डाली है कि एटलीस्ट उसके ऊपर भी देखा जाए, उसको भी कैटर किया जाए, उस चीज़ को भी, उस इशू को भी. जी सर. हाँ जी. 2023 में ये बिल आता है जी. तो 23 में तो आप मैडम ने जो बात किया तो थिएटर का, अरे थिएटर का और टेलीविज़न का, आज तो पूरा ये छोटे स्क्रीन के अंदर वेब सीरीज से लेकर ज़्यादा उस पर क्यों रोक नहीं आती? इस पे सर मैं बताता हूँ, 23 मैं इसका बताता हूँ एक्चुअली क्या हुआ था सर. ये बिल कई बार प्रोड्यूस हुआ है, ये चौथी बार था. इससे पहले अगर मैं पहले ना जाके, क्योंकि टाइम नहीं है इतना, 2019 में जो है ये बिल जो है इंट्रोड्यूस हुआ था पार्लियामेंट में. उसको क्या था कि बहुमत नहीं मिला था तो स्टैंडिंग कमेटी के पास चले गया था उसको रीस्ट्रक्चर करने के लिए. स्टैंडिंग कमेटी ने क्या किया था, उसको स्टैंड बैक पे कर दिया था, उसको होल्ड बैक पे कर दिया था मार्च 2020 में. मतलब 1 साल उनको लगा था इसको होल्ड करने के लिए. तो अब क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है, उन्होंने इसको पास कर दिया. अभी क्या है कि 2019 वाले बिल को अडॉप्ट करके पास किया है, और हर साल इसमें एनेक्सर्स ऐड होते जाएंगे. जैसे मैंने आपको बताया कि 3 दिन पहले ही हम लोगों ने ये चीज़ डाली है, क्योंकि आज की डेट में क्या है, थिएटर ठीक है समझ में आ रहा है, OTT पे मैक्सिमम कंटेंट है जो हमारा यूथ देख रहा है, एटलीस्ट बच्चे देख रहे हैं, उसके ऊपर
जो भी हमें लगा उसमें हमने 10 पॉइंटर्स बना के उनको भेजे हैं कि सर इसके ऊपर आप एक बार प्लीज़ इसको कंसर्न कीजिए। सर उसमें टाइम लगेगा क्योंकि एंड ऑफ द डे डिसीजन मेकिंग गवर्निंग बॉडीज़ हैं। हमारा काम क्या है, हमारी फेडरेशन का जो काम है वो है कि वहाँ तक बात पहुँचाना, वो हम वो चीज़ कर रहे हैं। और बेस्ट पार्ट क्या है, इस गवर्नमेंट से रिप्लाई भी आता है। एवरीथिंग इज अंडर प्रोसेस। अभी मैं बताता हूँ जब इतना काम हो रहा है तो ये भी बहुत जल्दी हो जाए। इसका प्रोसेस, बट प्रोसेस इतना लेंदी होता है या इतना टाइम लगता है कि जब तक यूथ पूरी गलत दिशा में चला जाता है। सर प्रोसेस अब लेंथी नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल अभी देता हूँ। 3 महीने पहले ही हम लोगों ने, जब ये आदि पुरुष फिल्म आई थी 3-4 महीने में आई थिंक, जब ये फिल्म आई थी, जिस दिन ये फिल्म फर्स्ट डे मैंने थिएटर पे देखी थी, उसके बाद ही मैंने एक लेटर इशू करा था उनको कि सर जो भी रिलीजियस कंटेंट है उसके ऊपर जो है एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट गवर्निंग बॉडी बैठनी चाहिए। वो हमने पीएमओ को भी रिक्वेस्ट करी थी, वो हमने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को भी करी थी और सेंसर बोर्ड को भी की थी। एंड यू कांट बिलीव, विद इन 24 आवर्स में एक उनका IAS लेवल का जो पर्सन है वो हमें अपॉइंट हुआ, उनका नाम मोबाइल नंबर हमें अपॉइंट हुआ। उन्होंने हमारे को कॉल करके कंसर्न पूछा कि सर क्यों करना चाहिए। मैं कहा, उनको हमने पूरा एक ब्रीफ बनाया, उसके बिहाफ पे हमने 3 पेजेस का एक उनको डोजियर दिया कि सर इस तरीके से ये चीज़ों के इश्यूज इसमें रहते हैं। क्योंकि अगर हम कोई भी रिलीजियस कंटेंट कर रहे हैं, आप भी अलग अलग सेगमेंट से आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग लोकेशन से आते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ किसी के दिमाग में कैसे बैठ जाए। तो हमने बोला कि इंडिपेंडेंट बॉडी बननी चाहिए, उसमें उस पर्टिकुलर रिलीजन में, कोई पर्टिकुलर एक रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, एटलीस्ट 2 लोग उस कम्युनिटी के होने चाहिए जो उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके अलावा सेंसर बोर्ड के लोग होने चाहिए और जो रिटायर्ड जज हैं एटलीस्ट एक जज उसमें होना चाहिए, क्योंकि जज जो है ना वो एक नॉर्मल निर्णय लेगा और वो इंडिपेंडेंट निर्णय लेगा, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। और जो ये अमेंडमेंट बिल आया है पारसी का लेके, इसने क्या किया है, सेंसर बोर्ड को, जो CBFC हम बोलते हो कि मैक्सिमम लोगों को CBFC समझ में नहीं आता, वो है क्या कहते हैं, जो सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड को मोर पावर दे दी गई है। और उसमें क्या बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं रहेगा। जो सेंसर बोर्ड की इंडिपेंडेंट बॉडी जो फाइनल डिसीजन लेगी। अभी एक और मूवी आई है, मेरे को अभी नाम स्किप कर रहा हूँ मैं, 28 सीन कट किए हैं उस मूवी के, तब जाके उसको UA सर्टिफिकेशन मिलेगा, अभी मिला नहीं है। उनको बोल दिया गया कि आप 28 फिल्म जो है इसको कट कीजिए, 28 सीन को, और वापस जो है इसको रिव्यू के लिए रिव्यू पिटिशंस में डालिए। तो वो भी स्ट्रिक्ट हो रहा है। ऑब्वियसली आपको पता है हमें 50 साल लग गए, 1952 से लेकर 2023। ओ माई गॉड को ले लीजिए आप, ओ माई गॉड में कितने सीन कट हुए हैं। तो वो चीज़ें गवर्नमेंट अपने लेवल पे काम कर रही है। और मेरे को जहाँ तक लगता है इस गवर्नमेंट का, क्योंकि ये जो है T20 खेलने वाली गवर्नमेंट है, अगले साल तक इसमें OTT पे भी आ जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने अभी एक लेटर इशू करा है, नेक्स्ट मंडे हम एक लेटर और इशू कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा टाइम, अगर हम रोज़ ही लेटर इशू करने लगेंगे वो कहेंगे अरे इन लोगों के पास कोई काम नहीं है। तो वो चीज़ है। तो हम रिप्लाई की बात करते हैं, रिप्लाई जैसे उनका आता है हमारी तरफ से विद इन 24 आवर्स में नेक्स्ट रिप्लाई उनको चले जाता है। तो हमारी कंटिन्यू कन्वर्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इस चीज़ को लेकर चल रही है। जी सर, एडवर्टाइजमेंट पे जो रॉन्ग कंटेंट आता है इसको कौन कंट्रोल करता है? से फॉर एग्जांपल कोलगेट के ऐड आती है, उसमें वो लिखते हैं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अप्रूव्ड और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रेकमेंडेड। सर ऐसा कुछ नहीं है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ऐसा कोई रेकमेंड नहीं किया है, लेकिन इसको कौन कंट्रोल करता है? सर देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इज़ अ प्राइवेट बॉडी, इट्स एन ऑटोनोमस बॉडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी नहीं है। ये हमें पता चला कोविड के टाइम पे, ठीक है सर। ये जो एडवर्टीजमेंट्स आती हैं ये भी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में ही आता है। उनका एक सेगमेंट है एडवर्टीजमेंट का, जहाँ पे ये एड्स वगैरह जो हैं अप्रूव होती हैं वहाँ पे। अब क्या होता है उसमें भी कि किस तरीके की एड चल रही है, क्या है, तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट जो एक सेंसरशिप लेकर आ रही है, वो भी परफॉर्मा तैयार हो रहा है। अभी आपने देखा होगा बीच में एक बहुत सारी बात उठी थी कि जो भी सेलिब्रिटी उस ब्रांड को एंडोर्स करेगा उसकी जिम्मेदारी होगी। तो ये चीज़ जो है चल रही है। हाँ, तो ये भी चीज़ उसके ऊपर भी चल रहा है सर काम, क्योंकि कई सारे ब्रांड्स हैं जो बच्चों को नहीं देखने चाहिए, कई सारी एडवर्टीजमेंट्स हैं, कई बात ऐसी आती है उसमें कि यार वो हर एक कम्युनिटी को पिच कर जाती, मतलब कि हिट कर जाती है। मैं किसी बड़े ब्रांड का नाम ले लूँगा, एक नमकीन का ब्रांड है, उसने पर्टिकुलरली लास्ट ईयर दिवाली पे किया था, वहाँ पे वो सेंसरशिप को लेके कोर्ट से उनको एक नोटिफिकेशन किया, उन्होंने फटाफट उसको ब्रांड को रिमूव किया। तो वो चीज़ें आती हैं और उसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है सर। आप दोबारा से बोलेंगे क्या एक सवाल बार है दोबारा आपका? बताएंगे सर। आपने जैसे बोला कि हम लोग चेक करते हैं, वो मतलब कैटेगरीज देते हैं कि ये दिखाना चाहिए, ये नहीं दिखाना चाहिए। वो सेंसर बोर्ड करता है सर, वो सेंसर बोर्ड पे करता है। वो सेंसर बोर्ड करता है, हम लोग नहीं करते, वो सेंसर बोर्ड करता है। एक्चुअली क्या है, कोई भी फिल्म रिलीज होने से पहले ना, मैं मेरी उम्र से ज़्यादा सर की उम्र है, सर ने बहुत एक्सपीरियंस देखा है
सर इसके ऊपर आपको इजीली ब्रीफ करेंगे कि सेंसर बोर्ड किस तरीके से एक्चुअल में काम करता है, क्योंकि सर जो है सर 3 टाइम के नेशनल अवार्डी हैं, जितने भी आपके फिल्म फेस्टिवल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं सब में लीडिंग कर रहे हैं, सर चेयरपर्सन है नेशनल फिल्म अवार्ड्स के, और सर जो है कई जगहों पे ज्यूरी मेंबर्स भी रहे हैं अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स में, सर ने कितनी सारी फिल्म्स का रिव्यू भी किया है, तो सर उसके ऊपर आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। यस, सो अभी मैंने जो गुड रोड की बात बताई वो सुबह मेरा ही पोपट हो गया था, तो सर प्लीज़ सुभाष सर प्लीज़ आप अब बोलिए कुछ और सबको गाइड कीजिए। हाँ जी बोलिए बोलिए आप। सर आपसे ये पूछना है कि नेशनल अवार्ड में अभी बहुत टाइम लगता है, जो पहले ऐसा होता था कि दिसंबर का कट ऑफ लाइन होता था, जनवरी फरवरी में ऐड आ जाती थी, और सर उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये सर कोविड की वजह से ना डिस्टर्बेंस आई है, 2-3 साल तक तो अवार्ड्स को किया ही नहीं गया, तो अभी तक बैकलॉग चल रहा है, तो वो बैकलॉग अगले 1-2 साल में क्लियर हो जाएगा। 1-1 साल में 2-2 साल के अवार्ड्स अनाउंस होने शुरू हो रहे हैं और वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। इसमें गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि आई वॉज पार्ट ऑफ वन जूरी जिसमें मुझे बुला लिया गया था, टिकट लगा दिए गए थे सारे, लेकिन कोविड की वजह से फिर मुझे फ़ोन आया कि सर वुड यू लाइक टू कम। ऐसा आप बताइए, उन्होंने बोला नहीं वी डोंट एडवाइस यू बिकॉज दिल्ली में बहुत बुरा हाल था, तो इसलिए वो 1 साल डिले हो गया। अब जब वो 1 साल डिले हुआ तो उस साल की फिल्में जो है अगले साल देखी गई, तो वो अभी बैकलॉग चल रहा है, वो ठीक हो जाएगा। बिकॉज इतने सालों से कभी डिले नहीं हुआ, लेकिन कोविड की वजह से डिले हुआ है, वो ठीक हो जाएगा। अभी मैं आपसे बेसिकली एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए हम लोग ना सवाल तो बहुत करते हैं, लेकिन कभी हम खुद से भी सवाल करते हैं, वो हम नॉर्मली नहीं करते। अभी सेंसर बोर्ड में कितने लोग होंगे? 50 होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, 1000 होंगे, 10,000 होंगे ऑल ओवर इंडिया, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और देश की आबादी कितनी है? 140 करोड़। अभी हम अपने घर में मेंबर अगर गिनेंगे कितने हैं, 2, 4, 6, 8, 10, जो हमारा कंसर्न है, why don't we create a self censor also within our family, which is very important and which is very easy? Why can't we tell our child, our husband, our wife कि भैया ये आपने नहीं देखना है। अभी सुबह सुबह मेरे को एक हैबिट है, मेरा एक ग्रुप बना हुआ है, मैं उनको सुबह एक भजन भेजता हूँ, और यूट्यूब में मैं जब वो भजन उनको भेजने लगता हूँ, नीचे पता नहीं क्या क्या गंदा गंदा कंटेंट आ जाता है, आई कांट हेल्प इट, लेकिन मैं प्योर माइंड से भेज देता हूँ कि यार जिसको भेज रहा हूँ वो रिस्पॉन्सिबल है, वो भजन ही सुनेगा, आगे का कंटेंट नहीं देखेगा। लेकिन वहाँ क्या सेंसर हो रहा है? यूट्यूब में गवर्नमेंट का कोई सेंसर नहीं है, और बाकी और चीज़ें आप सब लोग एडल्ट हैं, हेट स्पीचेस हैं, पॉर्न है, इतना कुछ भरा पड़ा है जिसमें कहीं ना कहीं हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं और देखते हैं, जो विच इज़ डैमेजिंग फॉर आवर ब्रेन। तो वो हमें सेल्फ सेंसर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गवर्नमेंट के रूल्स हो सकता है आज से 20 साल बाद बने, लेकिन हम तो अपने घरों में उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहले तो बच्चों के अंदर बेसिक जो एथिक्स डालें, उनके अंदर एक रिलीजियस माइंडसेट बनाएं, उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाएं, ताकि वो उनके अंदर आपकी एब्सेंस में भी वो डर रहे कि यार मैं आई एम अनस्टेबल टू माई पेरेंट्स, आई एम अनस्टेबल टू सोसाइटी, आई शुड नॉट वॉच दिस कंटेंट। अगर हम वो कंटेंट वॉच नहीं करेंगे तो वो बनेगा भी नहीं, क्योंकि हम वॉच करते हैं और वो बनता है, और वो इतना गंदा बनता है कि शर्म आती है कई बारी। तो इसलिए वी शुड एजुकेट आवर चिल्ड्रेन एंड आवर सेल्फ ऑल्सो। हम भी कई बार ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हमें नहीं देखनी चाहिए, कि यार इनको आप अवॉइड कीजिए। यस सर। हाँ जी बिल्कुल, आई एग्री विद यू। अब ये इस मामले में गवर्नमेंट को बंद करना चाहिए। वो जुए में लोग पैसा लूज करते हैं, बहुत ज़्यादा लूज करते हैं, लेकिन अब देखिए मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकती, और कई जगह पे गवर्नमेंट को वहाँ से रेवेन्यू भी अभी 28% उनको रेवेन्यू मिलती है ना। तो इसलिए कई जगह पे गवर्नमेंट की मजबूरी भी होती है, लेकिन आई फुली एग्री विद यू, एज ए नेशन वी शुड स्टॉप ऑल दीज थिंग्स। सबको मालूम होता है। नहीं चलना चाहिए, आई एग्री विद यू। हाँ यस, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। आप यस हाँ जी, वो मैं आई वॉज अबाउट टू से दैट। देखो चाइना में इतनी विल पावर है, चाइना ने व्हाट्सअप बैन किया हुआ है, चाइना ने फेसबुक बैन किया हुआ है, चाइना ने यूट्यूब बैन किया हुआ है। यस आई एग्री विद यू। इतनी स्ट्रिक्टनेस, पता प्रॉब्लम क्या है, जैसे हमारा जो है ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं,
इनके लिए प्रॉब्लम है। वो जो जो लेफ्टिस्ट हैं उठ के खड़े हो जाएंगे, वो बोलेंगे जी ये आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो उसकी वजह से वो डर जाते हैं। वो अपीसमेंट की पॉलिसी में वो काफ़ी फ़र्क पड़ा है सर। मैं आपको बताता हूँ ना, एक कमीज़ जो है ना जिस पे धब्बा पड़ गया, धब्बा तो हटाया जा सकता है, लेकिन जो कमीज़ जो है ऐसे रंग में डूब के काली हो के बाहर निकली है, उससे वो काला रंग निकालते निकालते वक्त लगता है। तो गवर्नमेंट काम करती है सर, उसके ऊपर अभी विशाल जी हाँ। बता रहे थे कि सर विशाल सर आप ही बताइए ना अपना एक्सपीरियंस प्लीज। प्लीज, थैंक यू। गुड इवनिंग अहमदाबाद, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। तो जैसे सर आपने बोला, आज के पेपर में ही आया था कि ड्रीम 11 को कुछ 25,000 करोड़ का टैक्स का इम्प्लीकेशन आया है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं कर रही है। आई थिंक व्हाट वी ऑल नीड टू डू इज़ बिकम सेल्फ डिसिप्लिन। वी नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर आवर एक्शंस ऑफ व्हाट वी वांट टू सी, व्हाट वी डोंट वांट टू सी। आज हमारे पास 10 प्लेटफॉर्म्स हैं जो फ्री देते हैं, तो हम सबसे पहले फ्री वाले देखते हैं प्लेटफॉर्म्स। तो जहाँ पे कंटेंट व्यूइंग को लेकर वो प्लेटफॉर्म के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो आपको फ्री में दिखा रही है, तो आप लोग सबसे ज़्यादा उसमें देखते हैं। सो इफ़ वी सेल्फ रियलाइज व्हाट वी वांट टू वॉच, व्हाट इज़ बेनिफिशियल फॉर आवर फैमिली, फॉर अस, that is where we need to come forward and take responsibilities on the content that is coming on the platforms also. Also in the beginning आपने internship के बारे में बोला था सर, तो internship के बारे में भी it's a process. आज मेरी एक फैमिली की कंपनी जो 50 साल से है, ईगल फिल्म्स, मैंने 20 साल पहले एज अ क्लैपर बॉय अपनी खुद की कंपनी में स्टार्ट किया था। सो इट वाज नॉट दैट मेरे पास प्लेटफॉर्म था तो मेरी कंपनी ने मेरे को दिया, तो मैंने भी क्लैप मारना से सीखने से आगे पूरा ऑलमोस्ट 3 साल लगाए। उसके बाद जाके मुझे मेरी खुद की कंपनी ने एक अपॉर्चुनिटी दी और फिर मेरे को बाकी की कंपनीज ने भी दिया। सो आई जस्ट फील द यूथ वेयर 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ अंडर 30, द यूथ शुड कम फॉरवर्ड, पेशेंस रखिए, डिटर्मिनेशन रखिए और गिव इट योर 100%, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आज की डेट में हमारे पास पेशेंस नहीं है। सो जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, वर्क ऑन योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर सेल्फ. Try to stay away from bad elements and just give in your best. That's all I want to say. इसमें एक चीज़ मैं बताता हूँ सर कि क्या है कि जो आप YouTube की भी बात करते हैं ना, हम कोई भी वीडियो देखते हैं ना, तो वीडियो में क्या होता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब का जो ऑप्शन आता है ना, साथ में एक उसमें ऑप्शन आता है उसको बंद करने का, डिसलाइक करने का, या फिर उसके ऊपर जब भी आप उसको डिसलाइक करेंगे या रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट का एक ऑप्शन आता है। जब भी आप रिपोर्ट करेंगे तो उसमें आता है कि वल्गर कंटेंट है, हेट स्पीच कंटेंट है, या है, या फिर लास्ट में एक ऑप्शन आता है अदर। जब आप अदर पे क्लिक करेंगे ना तो आपको मैसेज टाइप करना होता है। अगर आप 3-4 बार करना शुरू कर देंगे ना, वो चीज़ वहाँ पे वो जाकर रिस्ट्रिक्ट होती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो रेटिंग है ना वो गिरनी शुरू हो जाती है। विद माई पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने बहुत बारी ऐसा किया है और यूट्यूब से जवाब आता है, नो दिस डज नॉट फॉल, आई मीन दिस डज नॉट गो अवे फ्रॉम आवर पॉलिसी, सो इट इज़ ओके फॉर अस, बिकॉज यूट्यूब बहुत लिबरल है और वो इतना बॉदर करते नहीं हैं। ये जो ये कह रहे हैं वो ऑप्शन है, लेकिन लाइक्स का डेफिनेटली मैं बोलता हूँ कि मत कीजिए। अगर आप लाइक्स और उल्टा डिसलाइक कीजिए उसको, और हाँ डेफिनेटली तो कम होना शुरू होगा। बिल्कुल सर, या आई एग्री विद यू, आई फुली एग्री विद यू, यस। लेकिन अभी ऐसा है कि जो हमारा डिस्कशन हो रहा है उसके डिस्कशन के बीच में मैं आप लोगों को एक पोएम के थ्रू लेके जाता हूँ। उसका रीज़न ये है कि हम सब लोगों की लाइफ में सिनेमा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, एवरीबडी विल एग्री विद मी कि दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में हमने कुछ ना कुछ सिनेमा देखना ही होता है, कुछ ना कुछ कंटेंट देखना ही होता है। उसके बिना जैसे हम खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, सिनेमा भी उतना ही इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो सिनेमा ने पॉजिटिव क्या किया है वो मैं आपको इस कविता के थ्रू सुनाना चाहता हूँ, ताकि आप एक पॉजिटिव नोट पे ले जाएं। सुधार तो होते रहेंगे, आज के 10 साल के बाद कुछ और प्रॉब्लम्स आएंगी, 15 साल के बाद कुछ और प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन ये इंडियन सिनेमा स्पेशली हमारी सोसाइटी के लिए क्या कर रहा है उसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी पोएम सुनाता हूँ, तो थोड़ा सा आप पेशेंस से सुनिए। संपूर्ण भारतवर्ष के नागरिकों का मनोरंजन एवं ज्ञानवर्धक मित्र हूँ। मैं भारतीय चलचित्र हूँ, हाँ मैं भारतीय चलचित्र हूँ। मैं देश की दशा एवं दिशा दोनों दर्शाता हूँ। मैं देश की दशा एवं दिशा दोनों दर्शाता हूँ।
मैं देश की संस्कृति से सबका परिचय कराता हूँ। मैं देश की संस्कृति से सबका परिचय कराता हूँ। मैं तुम्हारा मित्र हूँ। हाँ, मैं भारतीय चलचित्र हूँ। ट्रीट इट एज योर फ्रेंड। हाँ, मैं भारतीय चलचित्र हूँ। मैं आध्यात्म, विज्ञान जैसे विषयों में भी डुबकी लगाता हूँ। हिंदू धर्म का तो मैं परम ज्ञानी कहलाता हूँ। मैं हर मनोरंजन प्रेमी का मित्र हूँ। हाँ, मैं भारतीय चलचित्र हूँ। मैं भारत के भिन्न भिन्न भाषाओं एवं संस्कृतियों का मेल कराता हूँ। अब देखिए कितना अभी हम इंटरमिंगल होते हैं। पंजाब गुजरात में आ रहा है, गुजरात पंजाब में जा रहा है थ्रू सिनेमा। मैं भिन्न भिन्न भाषाओं एवं संस्कृतियों का सम्मान दिलाता हूँ। मैं समस्त भारत पर छिड़का हुआ एक इत्र हूँ। हाँ, मैं भारतीय चलचित्र हूँ। मैं धर्म की सीमाओं में नहीं बनता, मैं भाषाओं की सीमाओं में भी नहीं बनता। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर किसी के हृदय में हूँ बसता। मैं यत्र तत्र सर्वत्र हूँ। हाँ, मैं भारतीय चलचित्र हूँ। मैं भिन्न भिन्न सभ्यताओं का संगम करवाता हूँ। मैं भिन्न भिन्न सभ्यताओं का दर्पण दिखलाता हूँ। मैं भाषाओं से मित्रता करवाता हूँ। मैं देश के अंदर सौहार्द फैलाता हूँ। मैं देश विदेश में भारतीय सभ्यता फैलाता हूँ। मैं भारतीय सभ्यता का राजदूत कहलाता हूँ। मैं भारतीय चलचित्र हूँ। हाँ, मैं भारतीय चलचित्र हूँ। हाँ, हाँ, मैं भारतीय चलचित्र हूँ। Everything is not lost. We should see the positive side of Indian cinema also. एक रामायण ने पूरे भारत को कैसे जोड़ा। Fortunately, I had honor of editing Ramayan. So I can say कि सिनेमा में इतनी पावर है। अगर हम पॉजिटिव चीज़ें देखें तो हम कितने पॉजिटिव हो जाएंगे, I can't tell you. सर वो रामायण जैसे गेहूं के खेत में खरपतवार भी होती है ना, तो हम खरपतवार तो नहीं खाते, निकाल के फेंक देते हैं ना। ऐसे ये गंदा कंटेंट हमको खुद सेल्फ सेंसरशिप में भी निकाल के फेंकना चाहिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि रामायण का वो दौर और आज के दौर में आपको पॉजिटिव चीज़ें क्या लग रही है? नहीं, आज के दौर में भी लोगों का माइंडसेट खराब नहीं है। आप देखिए रामायण दोबारा चली है तो उसकी व्यूअरशिप ज़्यादा बेटर हुई है। बिल्कुल। प्रॉब्लम यह है कि आपके पास थाली में जो परोसा गया है, आप उसको खाने पे मजबूर हो जाते हो कई बारी। तो इसलिए वो कंटेंट को डिस्कार्ड करना बहुत ज़रूरी है कि मैं भूखा रह लूँगा, मैं नहीं देखूँगा गंदी फिल्म। थिएटर को खाली जाने दो। OTT प्लेटफॉर्म पे अगर कोई ऐसा वेब सीरीज़ आई है जो ख़राब है, लिखिए, सोशल मीडिया पे लिखिए कि ये अच्छी नहीं है, इसको मत देखो, अपने बच्चों को मत दिखाओ। जब डिस्कार्ड करना शुरू करोगे तो बननी बंद हो जाएगी। OTT पे भी जो भी सीरीज या मूवीज होती हैं उनमें भी आप लाइक डिसलाइक रिव्यू कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन होता है। क्योंकि अगर आप देखें तो उसमें भी उसको कितनी रेटिंग मिली है ये पता चल जाता है। IMDb की रेटिंग्स होती हैं, तो उसमें भी आप वर्क कर सकते हैं। उसे इंटरनेट पे जाके, सोशल मीडियाज़ पे जाके उसको रेटिंग दे सकते हैं। मैं आपको एक जनरल बात और बताता हूँ, जापान की एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है, टमाटर अभी महंगे हो गए, 160 रुपये किलो। अच्छा जी, लोग फिर भी खरीदने जा रहे हैं। जापान में पता चला 160 रुपये किलो टमाटर हुए, वहाँ पे न्यूज़ आ जाती है कोई टमाटर नहीं खरीदेगा। हाँ, तो कोई टमाटर नहीं खरीदेगा, सड़ेंगे, वो इमीडिएटली नीचे ले आते हैं। तो गंदी फिल्में नहीं देखेंगे तो बनेंगी नहीं। हाँ जी, आपका महासंघ है तो जैसे नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इस तरह से गुजरात में भी एक समय में था गुजरात फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। वो आज पूरी तरह बंद हो चुका है। जो फिल्म फेस्टिवल वगैरह करता था, जो अच्छी फिल्में लेके आता, ऐसा कुछ करेंगे आप गुजरात में? हमारे हाथ में उतना नहीं है, बट वी कैन गिव द प्रपोजल और गुजरात गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा। बट वी कैन डेफिनेटली टेल देम कि ये अगर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एज अ फेडरेशन वी आर कमिंग अप, लाइक गुजरात टीम हमारी यहाँ पे है, तो लोकली वी आर एक्सपेंडिंग दैट। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे ये एक गैदरिंग हुई है हमारी रिगार्डिंग द बिल, अभी धीरे धीरे करके फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं। उसके बाद आपका, जैसे मैं अभी इंट्रोडक्शन में भी बता रहा था, वी आर इनटू म्यूज़िक इवेंट्स एज वेल। हमारे पास फिल्म डांस इवेंट्स हैं। तो जो नए बच्चे हैं जो डांस में हैं या म्यूज़िक में हैं, तो अभी दिल्ली NCR में वी आर प्लानिंग अ इवेंट जिसमें वी आर इनवाइटिंग 50 पार्टिसिपेंट्स। दिस विल बी अ 2-day इवेंट।
तो 25 पार्टिसिपेंट्स विल बी पार्टिसिपेटिंग इन ईच डे। तो उसमें जितने भी नए बच्चे हैं जो अपने आप को प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, वी आर कॉलिंग देम। उसमें ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक यू कम देयर, रजिस्टर, गिव अस योर वीडियोज़ एंड थिंग्स एंड यू विल बी सिलेक्टेड। वहाँ पे देयर विल बी टीम्स फ्रॉम डिफरेंट, लाइक DID से टीम के लोग होंगे, या मतलब नॉट नेमिंग एनी स्पेसिफिक, बट देयर विल बी पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री दे। तो वहाँ पे आप लोग इन्वॉल्व होंगे। एंड अभी दिल्ली में वी आर प्लानिंग दिस, गुजरात में होपफुली वी विल बी डूइंग इट दैट सून। वंस like this event only we can plan things. सर आपका जो भी कंसर्न था ना, मैं उसके ऊपर अभी एक लैमलाइट थोड़ी सी जानना चाहता हूँ। ये जो भी सिनेमाटोग्राफी अमेंडमेंट एक्ट का जो हमने आज ये कॉन्फ्रेंस रखी थी, उसके अलावा क्या है कि अभी अब अक्टूबर में दिल्ली के अंदर हमारे पैट्रॉन है डॉक्टर संदीप मारवा। डॉक्टर संदीप मारवा इज़ द चेयरमैन ऑफ BIS। तो क्या है कि BIS जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो है ना प्लानिंग का काम करती है और नई पॉलिसीज़ लागू कराने का काम करती है, उनको गाइडेंस का काम करती है। तो हम लोग एक सेमिनार करने जा रहे हैं, उसमें हम ऑल ओवर इंडिया से जो है फिल्म मेकर्स को, अलग अलग सेगमेंट्स के लोगों को हम इनवाइट कर रहे हैं। 200 लोगों को अभी हमने टारगेट लिया कि 200 लोगों को हम पूरी इंडिया में से इनवाइट कर रहे हैं। उनके व्यूज़ हम लिए जाएंगे और उस दिन वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स भी रहेंगे कि क्या क्या आपके रिव्यूज़ हैं, क्या क्या चीज़ें आपको लगता है कि वो होनी चाहिए। तो एक हम आपको एक वहाँ पे एक क्वेश्चनियर देंगे, वहाँ पे आप अपने पॉइंट्स रेज कर सकते हो और उसके अंदर से जो आने वाली जो पॉलिसीज़ हैं उसमें वो चीज़ें वो मैंशनड होंगी। अब मान लीजिए हमने 100 पॉइंट्स दिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि 100 में से अगर एक पॉइंट भी अगर आ जाता है तो हमारे लिए भी एक जो है एक इफेक्टिव स्टेप होगा कि हमारा कुछ योगदान रहा है उस सिनेमा। तो धीरे धीरे करके हम लोग अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी मिलकर कोलैबोरेशंस में, जैसे अभी आपने बात किया था कि किसी टाइम पे गुजराती फेडरेशन होता था, आप खुद उसको रिवाइव करने की कोशिश करिए ना सर, हमारे साथ मिलिए, सर से आप डिस्कस कीजिए, पुराने लोगों को फिर से जोड़ते हैं, नए लोगों को साथ मिलकर करते हैं, अच्छा करेंगे, अच्छा चलेंगे। ये हम करते रहते हैं। हमारा क्या है कि अगर आप अभी प्रेजेंटेशन गो थ्रू करेंगे ना, हमारे 18 इवेंट्स साल भर में होते हैं अलग अलग स्टेट्स में। अभी मैं एग्जांपल बताता हूँ, अगला हमारा जो हो रहा है वो नोएडा के अंदर हो रहा है, फिल्म सिटी के अंदर में। उसके बाद में हमारा जो उसके अगला जो इवेंट है वो बेंगलोर में हो रहा है। उसके अगला इवेंट हमारा तेलंगाना में हो रहा है। तो अभी जो 3 इवेंट्स हैं वो हमारे फाइनल हैं। चौथा इवेंट हम पंजाब में कर रहे हैं और फिर छठा इवेंट हम दिसंबर के अंदर दोबारा से जो है दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। इट्स अ कल्चरल फेस्टिवल जिसमें अभी जो अर्पित जी बात बता रहे थे, 50 से ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया से आर्टिस्ट उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर। गुजरात में आज हमारा फर्स्ट स्टेप है। मैंने आपको भी बोला ना, गुजरात में अभी हमने 5 लोगों को असाइन किया है कि जी अब आप कमान संभालिए, क्योंकि हम लोग सेंटर में बैठे हुए, हम लोग दिल्ली और मुंबई से आए हुए हैं। तो जो बेसिकली स्टेट टीम है, आप लोग स्टेट टीम के साथ कोऑर्डिनेशन में रखिए। आनंद दोषी जी हैं, जितेंद्र पारिक जी हैं जो हमारे नेशनल डायरेक्टर हैं, और नेशनल डिप्टी सेक्रेटरी हैं, और आनंद दोषी जी जो है स्टेट प्रेसिडेंट हैं। वो आगे आपके साथ ही मिलके हेल्पिंग हैंड्स आप उनके बनिए, ताकि जो आप अभी डिस्कस कर रहे हैं उन चीज़ों पे हम धीरे धीरे करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। वर्कशॉप्स की जैसे मैंने बात करी, आप अपने सजेशंस हमें भेजिए, सर को आप सजेशंस भेजिए, हम डेफिनेटली वर्क करेंगे। अभी एक ने वर्कशॉप की बात करी थी एक स्टूडेंट ने, तो वही हम बता रहे हैं कि जैसे जैसे हम 30 लोगों का बैच बनाते हैं, जिस दिन वो 30 लोगों का बैच बन जाता है, हम लोग वहाँ पे वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं सर। कुछ वर्कशॉप 1 दिन की होती है, कुछ वर्कशॉप 3 दिन की होती है, कुछ वर्कशॉप 15 दिन की होती है, कुछ वर्कशॉप 3 महीने की भी होती है। वो डिपेंड करता है कि हम कौन से कंटेंट की वर्कशॉप ले रहे हैं, वो चीज़ है सर। क्या है कि आप वर्कशॉप करेंगे, टीम तैयार करेंगे, लोग जुड़ेंगे, लेकिन टाइम पे पैसा मिलने का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर। हम उसके लिए भी काम करते हैं। हमारे पास ऑल ओवर इंडिया 48 एडवोकेट्स की लीगल टीम है। जो भी हमारे मेंबर को जो भी दिक्कत आती है वो उसको सॉल्यूशन देते हैं सर। आपको गाइडेंस भी मिलेगी। आप हमारे जो मेंबर्स को जो हम एग्रीमेंट, मतलब कि कोई भी एक आर्टिस्ट है हमारा, वो काम कर रहा है, वो हम उसको ये बोलते हैं कि आपको कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले हमारी लीगल टीम को भेजिए। हमारी लीगल टीम उसको गो थ्रू करेगी। अगर वो आपके फेवर में होगा या आपके फेवर में जो पॉइंट्स नहीं होंगे वो हम उसको हाईलाइट करके आपको रिसेंड कर देते हैं। एंड ऑफ द डे आपका अपना खुद का निर्णय है कि उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। अगर आपने एक्सेप्ट कर भी लिया है और उसके बाद अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारी लीगल कंसल्टेंसी टीम है, आप उसको अप्रोच कर सकते हो सर। जी सर। मेरा मतलब सेंसर की बात, हिंदी मूवीज में सेंसर है चलो, पर जो साउथ की डब मूवी जो आती है ना, तो उसमें तो वायलेंस से कुछ सेंसर ही नहीं है। आप देख लो उसको, ट्रांसलेशन की बेसिकली बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं है वहाँ पे। हिंदी में अगर थोड़ा भी ज्यादा बता दिया तो उसमें ज्यादा चल जाती है, बट जो साउथ की जो डब मूवी आती है तो आप देख लो उसमें वायलेंस कितना है इसके अंदर।
साउथ का ज़्यादातर आपको सर बता पाएंगे क्योंकि सर नेशनल अवार्ड्स के जूरी पैनलिस्ट हैं और चेयरमैन हैं। सर क्या है कि करप्शन जो है ना डीप रूटेड है, वर्ल्ड ओवर है और हम लोगों के अंदर भी है। हम वो साउथ की फिल्में जब चलती हैं बंद क्यों नहीं कर देते, क्यों देखते रहते हैं? करेक्ट है ना? मैं आपको बताता हूँ, देखिए जनरल सी एक आपको लाइफ की बात बताता हूँ। आप सड़क पे जा रहे हो, एक जगह पे कचरे का ढेर है और एक जगह पे साफ जगह है। आप कचरे के ढेर पे पाँव रख के जाएंगे या साफ जगह से जाएंगे? नहीं पहले नहीं वो चलने दीजिए, आप चैनल चेंज कर दीजिए। नहीं बहुत हैं सर। सर आप नहीं ऐसा नहीं है और सर। सर ये जो आपने वायलेंस की बात की ना, तो उस पे साउथ की फिल्मों में मैंने बड़ा नोटिस किया है कि जस्ट ऐसे ही हाथ उठाएगा, पैर उठाएगा और इतना दूर वो भागेगा बंदा, लोगों को वो देखने में बहुत मजा आता है, इसीलिए शायद वो चीजें चलती है। बिल्कुल सर। सी द कंटेंट बिल्कुल विपरीत परिस्थिति गुजराती फिल्म मेकर्स की ये है। साउथ में इतना कुछ करने देते हैं और हमको थोड़ा भी नहीं करने देते। गुजराती पिक्चर में अगर छोटा सा ब्लड भी निकला तो तुरंत कट देते हैं। सर इसीलिए गुजरात इतनी प्रोग्रेस भी कर रहा है ना। वो मैंने बताया ना कि साउथ वाले ऐसे हाथ करेंगे तो वो बंदा कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। और सर यहाँ इनको ब्लड से भी प्रॉब्लम है। आपको मैं एक बात कह रहा हूँ ना, आप कचरे पे पाँव मत रखिए, आप साफ जगह पे चलिए, धीरे धीरे वो कचरा हटना शुरू हो जाएगा। कचरे पे पाँव रखने का नहीं है, हाँ। जो जरूरी है वो भी गुजराती में नहीं करने देते। और मेरा खुद का चलिए कल एक मोर्चा निकालते हैं। हिंदी में अभी मोदी जी भी आए हुए हैं तो मिलते हैं आज। दुखी है ना, उनके चेहरे से ही लग रहा है वो दुखी है मैडम। नहीं यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी आज मैंने इन लोगों को बात समझाई साउथ की, मैं फिल्म का नाम नहीं लूंगा। आज से 30 सुनिए मेरी बात, 30 साल पहले करप्शन हमारे मुल्क में जो है, सेंसर बोर्ड में भी है। 30 साल पहले क्या हुआ, मैं एक फिल्म एडिट कर रहा था, बहुत बड़ी हिट थी, सुपर हिट थी फिल्म, बड़े बड़े स्टार्स थे उसमें। मैं यहाँ से फ्लाई करके गया उधर मद्रास, वहाँ पे वो अपना फिल्म सेंसर होनी थी। तो सेंसर दिखाने से पहले प्रोड्यूसर ने मुझे बोला इसमें से 1000 फुट एक्शन काट दीजिए। ठीक है, आई एम गिल्टी, आई एम टेलिंग यू कि उस वक्त मैं यंग था। अब प्रोड्यूसर ने मुझे कहा, मुझे काटना पड़ा, आई डिडंट नो व्हाट इट इज़। 1000 फुट एक्शन हमने काट दिया, वो सेंसर बोर्ड को दिखा दिया, सेंसर बोर्ड के लोगों को पैसा दिया गया था, उन्होंने उसको ओके कर दिया। अभी जब वो फिल्म की एक कॉपी सबमिट करनी होती थी उस टाइम पे, तो वो कॉपी में वो जो कट से दोबारा जोड़ के वही लेंथ बढ़ा के वो सबमिट कर दी, जो कि सेंसर बोर्ड ने देखा ही नहीं। अभी वो सेंसर बोर्ड के मेंबर्स की गलती है या नहीं है, उन्होंने पैसा खाया या नहीं खाया, पर किसी ने तो खाया है। हाँ जी, अब तो 16 के जमाने में तो सेंसर से काट देते थे और प्रिंट में रखते थे। हाँ वही मैं आपको कह रहा हूँ सर। प्रॉब्लम क्या है कि अभी OTT प्लेटफॉर्म पे हम कौन सा ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, उसमें इतना ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है। मानने के बाद ये नहीं हो रहा है, डिजिटल में मिनट टू मिनट मानते हैं वो लोग। हाँ, अभी सेंसर ने ये काटा है, वो लोग देखते भी है। मिनट टू मिनट नहीं, सेकंड टू सेकंड का उसमें फ्रेम टू फ्रेम, सेकंड टू सेकंड चलता है उसके अंदर। अगर एक फुट एक फ्रेम है ना, तो एक फ्रेम मेंशन करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं सेंसर बोर्ड की स्क्रीनिंग के लिए बैठती हूँ तो उसमें हम सेकंड बाय सेकंड का भी हिसाब रखते हैं कि इतने सेकंड से इतने सेकंड के बीच में ये प्रॉब्लम आया है, तो वहाँ अब नहीं, अब पॉसिबल नहीं है वो सब चीज़। और वो यूएफओ वाले वो डिजिटल प्लेटफॉर्म वाले चेक भी करते हैं। वो नहीं रहा है, पर प्रॉब्लम मैंने जो कहा ना सर, गुजराती के लिए अगर आप लोग बात कर सकते हो या तो CBFC को जरा बता सकते हो, तो गुजराती फिल्म देखने का नजरिया बदलने की जरूरत बहुत है। क्योंकि हमको भी साउथ की कंपटीशन में हम एडल्ट वर्क नहीं करें, तो जो फाइट है, तो जो एक्शन है, वो एक्शन भी अगर हम वो लेवल की नहीं करें तो कोई देखेगा नहीं हमारी पिक्चर यहाँ पे। सर उसमें क्या है कि जो आपका कंसर्न है ना, वो आपने अभी तक रेस किया किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के आगे? कितनी बार करने वो हमने तो किया नहीं, इन रिटर्न किया है आप लोगों ने सर? रिटर्न में भी किया हुआ है और हम चाहते हैं कि आपकी ओर से। मैं वही कह रहा हूँ, आप एक काम करिए, आप उसकी जो कॉपी है ना, जो आपने इन रिटर्न अभी फाइल किया है, जितने पहले की भी है, अगर आपको अभी वो नहीं भी मिलती है, तो उसके ऊपर एक एनेक्स्टर लगा के ना आप एक फ्रेश डाल दीजिए और एक CC में कॉपी हमारी फिल्म फेडरेशन को भेज दीजिए। ठीक है ना, उस पर क्या होगा कि हमारी तरफ से भी एक रिक्वेस्ट लेटर जा सकता है। इनकी जो बात है वो सही है कि साउथ में जो है बहुत लिबरल है सेंसर बोर्ड। वो क्यों है,
अब उसके कई कारण हैं, जिसमें से एक कारण मैंने आपको बताया है। हाँ, डेफिनेटली है। जी सर, आप बताइए। सर, सिनेमा हमारे जीवन का एक इंटीग्रल पार्ट है, तो सिनेमा हमारे जीवन का एक इंटीग्रल पार्ट है। अब हम युवा जो दौर है वो सिनेमा से एजुकेशन लेता है, लेकिन युवा दौर के लिए जो है एजुकेशन में सिनेमा कहीं ना कहीं मिसिंग है। यस, डेफिनेटली। तो बहुत कम है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी तक आ गई, लेकिन ये युवा के लिए FTI जैसे इंस्टीट्यूट्स तो है ही, लेकिन युवा को इन डेप्थ सिनेमा एकेडमिक्स हार्डकोर कब आएगा? और भारत जैसा देश जिसमें 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, जिसमें आज चांद पे लैंड भी कर चुके, ऐसे देश में सिनेमा का इतना युवा के लिए नहीं है। तब बेटा धीरे धीरे हो रहा है और काफ़ी स्पीड में हो रहा है। पहले तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था। अभी अगर आप गूगल पे सर्च करो तो आपको काफ़ी कुछ कंटेंट युवा के लिए भी मिल जाता है, लेकिन डेफिनेटली बहुत कम है। जितना चाहिए उसका हार्डली 10% है। तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा, बिकॉज उससे रेवेन्यू भी जनरेट होती है ना। तो पीपल आर डूइंग दैट ऑन देयर ओन, इंस्टीट्यूशंस आर डूइंग दैट, कॉलेजेस आर डूइंग दैट, दे आर अपलोडिंग कंटेंट ऑन इंटरनेट। तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा, उसका जो लाइब्रेरी है वो बढ़ती जाएगी। इसके एक एग्जांपल और बताता हूँ। जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें क्या हो रहा है कि कई सारी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स जो हैं डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज भी करवा रहे हैं, इसको लेके सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी करवा रहे हैं। हम लोग भी जो है 1 महीने और 3 महीने का सर्टिफिकेशन कोर्सेज अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। साथ ही साथ में क्या है कि जो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसको भी एक हमने परफॉर्मेंस सेंड किया है कि सर आप जो है जो हमारा फिल्म मेकिंग के कोर्सेज हैं इसको भी स्किल डेवलपमेंट में लाया जाए, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट में कई सारी सब्सिडीज़ आपको मिलती हैं जो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं। तो हम लोग भी धीरे धीरे करके जैसे भी हमारे पास रिव्यूज़ आते हैं, लोगों की ओपिनियंस आती हैं, हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं ऑलरेडी। और मुझे जो लगता है वो लगता है कि जल्दी से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ आई हैं, जिस तरीके से अब आपको कोर्सेज़ में उनके ऊपर जो आप कोर्सेज़ करते हैं, जैसे BBA का करिए आप, या BCA का करिए, BBA करिए, या सिनेमाटोग्राफी का करिए, मास कॉम का करिए, उसमें आप उसमें काम कर रहे हैं। और साथ साथ में आप तो कॉर्पोरेट्स जैसे जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, कॉर्पोरेट्स उसमें आ रहे हैं। जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की मैं बात करता हूँ, एनिमेशन की बात करता हूँ, VFX की बात करता हूँ। हमारे साथ डॉक्टर संदीप मारवा जुड़े हुए हैं, जिनका बहुत बड़ा एक अपना खुद का जो है AAFT यूनिवर्सिटी चलती है और मारवा स्टूडियो है उनका, वो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है कि सर्टिफिकेशन कोर्स और वो सब है, उसके अलावा प्लेसमेंट्स भी अब मिल रही हैं। तो धीरे धीरे विंडोज़ ओपन हो रही हैं। साथ में क्या है कि कोविड से पहले हम लोग OTT को इतना नहीं जानते थे। OTT जब से आया है तो लोगों को काम और आसानी से मिलना शुरू हो चुका है। बहुत ज़्यादा विंडोज़ ओपन हो गई हैं। धीरे करके मेरे को जो उम्मीद है अगले 5 सालों में सब कुछ ही चेंज हो रहा है धीरे धीरे। बल्कि OTT आने से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यूथ को मिल रही है जो पहले नहीं मिलती थी। तो अभी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं और बहुत सारे ज़रिया है। आपको ऑनलाइन कोर्सेज है, आपके पास यूट्यूब पे आप जाओगे आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगी। इफ़ यू कांट अफोर्ड टू पे, यू कैन लर्न थिंग्स ऑन यूट्यूब ऑल्सो। सो इट्स नॉट दैट एवरीथिंग द गवर्नमेंट हैज़ टू डू, व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर सेल्फ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम तो एक जरिया, एज अ मिफ वी आर गिविंग यू अ प्लेटफॉर्म दैट वीव कम टू गुजरात, associate with us, get people, we will help you out. We are offering you something. What is it that you are offering to us is what I want to know. What is it that you are giving us is what I want to know from you also. एक छोटा सा वाक्य भी याद आया मुझे वो कैमरा देख के। आज से 15 साल पहले क्या होता था, अगर किसी को कैमरा सीखना होता था ना, वो कितने सारे इंस्टीट्यूट नहीं होते थे, वो क्या करता था, कैमरामैन के पास ना अटेंडेंट लग जाता था। और पता है वो कैमरामैन अटेंडेंट क्या करवाता था, उससे 3 से 6 महीने तक ना सिर्फ उसे अपना बैग उठवाता था, उसको कैमरा टच नहीं करने देता था। तो आज की डेट में क्या आप यूट्यूब पे जाके अपने कोर्सेज ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो और उसको वॉच करके सीख सकते हो। आज की डेट में बच्चा मोबाइल चलाना सीख रहा है, वो कैसे सीख रहा है, वो ऐसी तो सीख रहे हो कि हाथ में गैजेट है। तो जो है वैसे भी सिनेमा की अगर हम बात करते हैं, ये OTT की बात करते हैं, तो एक ब्रॉड व्यू में लोग सोचते हैं कि एक्टिंग, हीरो बन जाए, हीरोइन बन जाए, हो गया। बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने स्किल, अपने एक्सपर्टीज़ के हिसाब से आप सीख सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे विशाल जी ने कहा कि इतने प्लेटफॉर्म्स होना इज़ अ बून फॉर द यंग जनरेशन, क्योंकि उनके लिए प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे खुल गए हैं। अब आप देखिए OTT पे इतने आर्टिस्ट हैं जिनको आपने कभी बड़ी स्क्रीन पर नहीं देखा होगा, बट दे आर डूइंग सो वेल ऑन OTT। उनकी लगातार बार सीरीज़ आती है, वो बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, वहाँ पर टैलेंट को पहचाना भी जा रहा है।
तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप सारा का सारा आप जो भी है कि हमें तो एक्टिंग में सारे के सारे जो टॉप एक्टर्स हैं वही नहीं बन सकते, उनके साथ साथ और भी कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं सिनेमा में बहुत सारे जो एक्टर से ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, जो हीरो मटेरियल जो होता है उससे कहीं ज़्यादा काम करने वाले बहुत अच्छे कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं जो ज़्यादा अप्रिशिएट किए जा रहे हैं. Also, I would like to add here, you have 20 plus departments besides actors. So you have 20 options with you. तुम्हें 14 घंटे दिन में देना पड़ता है. ऐसा नहीं कि it's an easy job. When you go for a shoot, it's a 9 to 9 PM. तो हमें 8 बजे पहुंचना पड़ता है. ख़त्म करते करते रात के 10 बजते हैं. कोई बैंक 14 घंटे काम नहीं करता, कोई कॉर्पोरेट 14 घंटे काम नहीं करता. तो प्री और पोस्ट एक OTT को लाने के लिए 18 महीने लगते हैं और आप लोग को रिजेक्ट करने में 6 घंटे लगते हैं. तो you don't see the 18 महीना that is gone. You just see those 6 hours of good and bad and you all say आप लोग कुछ नहीं करते. So there's a lot of process, hard work and initiative that goes into it. तो क्रेडिट लेने के लिए हम सब आगे आ जाते हैं, बट जब मेहनत करनी होती है, क्या आप वो 14 घंटे अगले 6 साल के लिए दोगे? पहले तो वो बताइए मुझे. अगर आप वो दोगे, then you come and join us. I will assure you that you will get a placement 2 years from now somewhere where you want to get. But I want to see that dedication in you first. इसमें मैं एक चीज़ और करूँगा. आप जो विशाल भाई ने 6 घंटे की बात करी, आधी दुनिया तो ट्रेलर देख के बता देती है कि देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, तो वही खत्म हो जाता है. वो मतलब ट्रेलर तक ही बात खत्म हो जाती है सर. वेरी ट्रू, वेरी. सर आप कुछ पूछ रहे थे. सर आई एम देवेंद्र देसाई, मोटिवेशनल स्पीकर. तो सो मेनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस से जुड़ा हूँ. अभी आज मोदी जी ने जो बताया यंगर्स के सामने ही कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी पड़ी है और आपको बहुत आगे आना है, और जैसे मैं और बहुत सारे ऑफिसर्स भी आपसे जुड़े हैं और एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप ये सब कुछ. पर बहुत सारे यूथ ऐसे भी है कि लाइक वो डिप्रेशन और लाइक स्ट्रेस उससे भी गुजर रहे हैं. बहुत सारे कुछ रूरल यंग्स है ना, वो लोग को भी कोई दिशा पता नहीं है. तो हो सकता है कि लाइक एक जॉली LLB या तारे जमीन पर या फिर जैसे ऐसे क्वेश्चन उठे उसी संदर्भ से एक ऐसा फिल्म बना जाए ताकि जैसे छोटे बच्चे भी जहाँ पर कंटेंट पर जाते हैं तो ऐसा कुछ मैसेज चालू फिल्म है ताकि बहुत सारे लोगों को ये पता चलता है. ये जरूरी है. आज जैसे इतने ऑडियंस को तो पता चल गया कि डिसलाइक कर दो या ये कर दो ये कर दो, पर मैसेज आगे जाना चाहिए. सर इसमें मैं एक चीज़ बताता हूँ. पहली बात तो यह है कि हमारी फिल्म फेडरेशन में 12 मोटिवेशनल स्पीकर है ऑल ओवर इंडिया से. वो हमारे मेंबर हैं. मैं आपको कोई मोटिवेशनल स्पीकर है मैं वो बता रहा हूँ. दूसरी चीज़ क्या है जो आपने अभी बात करी कि एक लिमिटेड सेगमेंट रह जाता है. लिमिटेड सेगमेंट ऐसा नहीं है. आजकल बहुत सारी फिल्में ऐसी बन रही हैं, बहुत सारा कंटेंट ऐसा बन रहा है. इनफैक्ट आज की डेट में तो ऐड भी ऐसी आ रही है. मेरी जो मनपसंद ऐड है ना, जो मुझे बार बार देखनी पसंद होती है, वो होती है टाटा की ऐड. टाटा की ऐड आप देखोगे या कोई और आजकल कई सारे बैंकिंग सेक्टर की ऐड है, नई नई एड्स बन रही हैं. एक्चुअली क्या है, क्रिएटिविटी 2 तरीके की होती है, या तो अच्छी होगी या बुरी होगी. जो यूथ आ रहा है अगर वो अच्छी क्रिएटिविटी दे रहा है, लोग वो ऐड देखना पसंद करते हैं. आप हम छोटे बच्चे से लेके बड़े अगर जो हमारे लेवल का सर तक है, हमारा बजाज की ऐड आती तो एक गाना आता था बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, वो हमें आज देखने को भी मिल रही है. तो क्या कि बच्चों के मुंह में वो आज भी चढ़ा हुआ है. रामायण की टून आती थी, दूरदर्शन की टून आती थी, या मालगुडी डेज आता था. आज की डेट में क्या होता है, कंटेंट के ऊपर ही मेन काम है. अगर कंटेंट अच्छा है हमें वो गाना याद रह जाता है, कंटेंट खराब है हमें पता भी नहीं चलता कौन सी फिल्म का, हमें सोचना पड़ता है या सर्च करना पड़ता है. ऑप्शन इतने सारे आ रहे हैं. तो मेन चीज़ वो है कि कंटेंट किस तरीके से बना रहा है वो क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, क्रिएटिव राइटर्स के ऊपर और क्रिएटिव जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके ऊपर है. बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं. अगर आप, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं. ठीक है, कुछ लोग हैं आप शायद किसी और को देख के प्रभावित होते होंगे, कुछ लोग हैं किसी और को देख के प्रभावित होते होंगे. मैं मोटिवेशनल स्पीकर के अभी नाम नहीं लेना चाहता. ठीक है, तो हर तरीके का वैसा वर्षा है. हम लोग तो बात जो है उस पर आप जवाब नहीं दे रहे. बात ये है कि जो यंगर्स है ना उसको सही दिशा में टर्न करने के लिए अगर फिल्म फेडरेशन एक अच्छी सी ऐसा कोई फिल्म बनाए. सर हम बना रहे हैं, मैं वही बता रहा हूँ ना. अभी बाल नरेन एक मूवी आई थी. हम लोग क्या कर, बाल नरेन आपने देखी है, दीपक मुखर्जी की है जिन्होंने धाकड़ बनाई है और ये सब मूवी बनाई है. बाल नरेन को हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट स्क्रीनिंग करा रहे हैं. एक टाइम पे 300 से 500 बच्चा उसको देख रहा है. और बाल नरेन जो मूवी बनी है उसकी पूरी जो टीम है वो हमारी फेडरेशन की ही मेंबर है. और वो पूरा कोविड इस तरीके से रहा कि मतलब इंडिया में एक इकलौता गांव था जहाँ पे कोविड का एक भी केस नहीं था. तो दैट इज़, और वो सिर्फ एक बच्चे की वजह से. तो उस
पे पूरी वो मूवी है एंड वो हम लोग team उसके ऊपर हमारी ऑलरेडी है काम उसकी। कर रहे हैं, पर मेन चीज मैंने आपको बताया ना, हम लोगों के काम करने से पहले हम लोग कोई भी कंटेंट सोच लेते हैं, पर काम है क्रिएटिव कंटेंट राइटर का कि वो किस तरीके से अपनी क्रिएटिविटी उसको दिखा रहा है, वो अच्छे में दिखा रहा है या बुरे में दिखा रहा है, वहाँ वो चीज़ निकल कर आती है। एक्चुअली होता क्या है, फिल्म जब हम बनाने की सोचते हैं ना, हर कोई फिल्म मेकर एक अच्छे नॉवल थॉट पे बनाने की सोचता है, जब वो बन रही होती है ना, बनते 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 वो किस मोड़ पे आ जाती है 3 घंटे के बाद में, कभी कभार तो ऐसा होता है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर कहते हैं यार इसको रिलीज़ करें कि ना करें। तो मेन चीज़ वो है, वो क्या है कि आपको खुद इनिशिएटिव लेना पड़ता है कि कंटेंट कैसा है, और हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं बहुत। जैसे आदि पुरुष बनी थी, तो उसका अगर हम मोटिव देखें या उसका जो ओरिजिन ऑफ थॉट है वो वॉज वेरी गुड, मतलब वो एक पॉजिटिव नोट था, बट जब वो एग्जीक्यूशन में गया और फाइनल प्रोडक्ट निकला तो वी ऑल नो व्हाट हैपेंड, एंड उस चीज़ पे एक्सेप्टेंस ऑफ एपोलॉजीज आई है लोगों की, और हम लोगों ने भी उस चीज़ को कहीं ना कहीं लोगों ने उस चीज़ को डिफाई करा है कि हाँ हमें नहीं कंटिन्यू करना, या मूवी हॉल से हटाई जाएगी, या जो भी चीज़ें एक्शंस हुए उस पर वो हमने खुद करा। अदरवाइज देर आर मेनी कंटेंट्स, जैसे अभी साउथ के कंटेंट की बात हो रही थी, या इवेंचुअली किसी भी रीजन के कंटेंट की बात करें, एक्सेप्टेंस हमारे अंदर आनी चाहिए कि हमारे को वो चीज़ देखनी है या नहीं देखनी। देर आर मेनी वेब सीरीज और एपिसोड्स ऑन OTTs। नहीं सर, फ्रस्ट्रेशन का कारण मैं आपको बहुत सिंपल से बताता हूँ, लाइक आई एम द यंगेस्ट वन इन दिस पैनल राइट नाउ, उस तरीके से अगर मैं बताऊँ तो उस हाँ एक चीज, एक मिनट हाँ, आप सर प्लीज़। आप जो कह रहे हैं ना, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मैं आपको ये बताता हूँ कि भारतवर्ष हमारा देश आध्यात्मिक देश है, सदियों से है। उस वक्त फिल्में तो नहीं बनती थी, उस वक्त कौन उनको ये सिखाता था कि नेगेटिव मत हो, कौन सराउंडिंग्स, अपने माँ बाप, टीचर्स, यार दोस्त, करेक्ट है, तो वो अब मिसिंग है, क्योंकि वो जो है ना, मैं सर एक पूरी बात नहीं बोल पाया, मैं बस ये बोलना चाह रहा था, आई एम द यंगेस्ट वन आफ्टर सर के, मतलब मैं उनके बाद सबसे यंगेस्ट बैठा हूँ इस पैनल में। मैं तभी मैं करेक्ट कर रहा हूँ ना, मैं करेक्ट कर रहा हूँ उस चीज़ को, आपने बीच में बोल दिया। मैं जो बोलना चाह रहा था वो आई एम द यंगेस्ट वन ऑन द पैनल आफ्टर हिम, तो मतलब उस तरीके से मैं वैसे बताऊँ तो उस रेस्पेक्ट में चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या है कि गाइडेंस की बात करते हैं, हम फ़ोन्स देते हैं, मतलब लाइक बच्चों के पास फ़ोन्स हैं, आज की डेट में सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि मतलब इतना कंटेंट उस पर अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हम अपने एंड पे एज एडल्ट्स जनरली रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। अब मैं एक बहुत सिंपल सी बात है, अब सिगरेट स्मोकिंग, अगर मैं स्मोकिंग हो गया या कोई भी चीज़ ऐसी बहुत बेसिक चीज़ है, हम उसके ऊपर नोटिफिकेशंस देते हैं, सबको पता है दैट्स इट्स समथिंग पॉइजनस एंड इट विल इफेक्ट नेगेटिवली, बट स्टिल पीपल हु आर डूइंग इट, दे आर डूइंग इट। बट देर आर पीपल जो नहीं करते या उस चीज़ को अवेयरनेस फैलाते हैं कि हाँ हमें नहीं करना है। और मूवीज़ के अंदर भी वो सेंसर का आता है, मतलब वो आस्क ऑफ स्क्रिप्ट है या जो भी आप कह लीजिए, तो उस तरीके से वो चीज़ है। तो उन सब चीज़ों में रिस्ट्रिक्शंस हर तरीके से हैं, और वो हमारे ऊपर है कि हम किस कंटेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अगर ध्यान देंगे तो कॉमेडी में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, मतलब बीच में लाइक इट स्टार्टेड विद स्टैंड अप, कहीं पे कुछ प्रेजेंस नहीं था, स्लोली एंड ग्रेजुअली उसके अंदर एपिसोड्स आने शुरू हुए, देयर आर मेनी लाइक चैनल्स जिस पे वो सब चीज़ें हुई, उसमें वल्गैरिटी आई बट उसके अंदर कंट्रोल आया, बट पीपल स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट कि हाँ हमारे को इस टाइप का कंटेंट नहीं देखना, दैट इज़ वाई दैट चेंज्ड। अगर वो एक्सेप्ट हो जाता तो शायद वो चीज़ कंटिन्यू होती। तो सेम गोज फॉर OTTs और द मूवीज़ के let it be censor board or any of the producer director who are thinking about the movies, उनके दिमाग में ये चीज़ आती है कि आज के लोग क्या देखना चाहते हैं, तो वो उसको रिलेट करके कंटेंट बना रहे हैं। बट नहीं बेटा, इसमें एक प्रॉब्लम और भी है, आज के लोग क्या देखना चाहते हैं, कई बार क्या होता है, अब पूरा मार्केट टमाटर से भरा पड़ा है और आलू मिल ही नहीं रहे, तो वो बोलता है यार टमाटर से पेट कश्मीर फाइल्स इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, अगर मैं मूवीज की बात करता हूँ। हाँ, वो तो मतलब दैट केम अप एज अ, अगर हम रिजेक्ट करेंगे। हाँ भाई जैसे आप बता रहे हो, मैं यंग हूँ तो ज़्यादा आप बता सकूँगा, पर जो सर बता रहे हैं तो ऐसा बता रहे हैं कि माहौल जो क्रिएट होगा ना, तो अपने आप मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, आप जो सही आज का सब्जेक्ट नहीं है पर फिर भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो सवाल आपने उठाया है। हाँ जी, क्योंकि नेशन तो हमारे कैरेक्टर से बनता है, कैरेक्टर से हमारा कैरेक्टर नहीं है तो नेशन नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। अभी हम में से कितने लोग सुबह अपने बच्चे को बोलते हैं कि 4 मंत्र पढ़ो तो उसके बाद ब्रेकफास्ट करेगा। चलो सर, वो मंदिर जाओगे, मत्था टेक के आओगे, प्रसाद में, बेटा मंदिर जाना पहले
प्रसाद अपने वो करेंगे तो फॉलो होगा। नहीं करते ना हम खुद ही नहीं जाते मंदिर। मैं तो नहीं जाते ना, मैं तो वो कल्चर धीरे धीरे हर जगह खत्म हो रहा है। उसका इफेक्ट सिनेमा में भी आ रहा है। करेक्ट है, जैसे मैंने अभी कहा रामायण अभी भी चली है तो सुपर हिट हुई है, इसलिए लोगों के दिमाग में जो कंटेंट उनको परोसा जा रहा है जबरदस्ती, वो उस कंटेंट को देख के करप्ट हो रहे हैं। तो सर मैं यही बता रहा हूँ, डिप्रेशन है ना सर, ये डिप्रेशन आज आप देखो ये सूरत वगैरह में बच्चे सुसाइड कमिट कर रहे हैं, बस वही क्योंकि माँ बाप प्रेशर डाल देते हैं, अगर तेरा 80% नहीं आया तो मार दूंगा तेरे को, तूने तेरे बाप की कमाई इतनी मेहनत की कमाई है, तू कर क्या रहा है, तेरे पापा ने पसीने से पैसा कमाया, और ऐसा लोड डाल देते हैं बच्चे पे कि वो घबरा जाता है कि मेरे बाप ने तो लाख रुपया खर्च किया है मेरे ऊपर और वो लाख रुपया बर्बाद हो गया, मैं सुसाइड कमिट कर लेता हूँ। जी नहीं सर, ये एक्सेप्टेबिलिटी हमारे को, ये चीज़ हमारे को चेंज करनी है ना एज नहीं, वही ग्रास रूट पे फैमिली लेवल पे पहले उसको चेंज करना चाहिए। और क्या है, आपको अगर टेस्ट जो है, आप देखिए हम लोग कई वेजिटेरियन भी होते हैं, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं चिकन कितना भी अच्छा बनाओ नहीं खाऊंगा ना, तो लेकिन मेरे अंदर वेजिटेरियन का जो टेस्ट है वो लाया जाएगा या आएगा या मैं डेवलप करूँगा तो ही होगा ना। और ऐसा तो नहीं है चिकन खाने वाले लोग जो हैं वो वेजिटेरियन खाते ही नहीं है, बोलते हैं यार ये घास फूस हम नहीं खाएंगे। तो हमें समाज को किस दिशा में लेके जाना है वो बहुत ज़रूरी है। सिनेमा भी तो तब देखेंगे जब लोग जिंदा रहेंगे, सही रास्ते पे चलेंगे। बिल्कुल आई एग्री विद यू, जो परोसने वालों की भी गलती है, लेकिन अगर आप उस दुकान पे जाओगे नहीं जहाँ लिखा है यहाँ पे सिर्फ मटन मिलता है, तो वो दुकान अपने आप बंद हो जाएगी, है ना। तो वो भी हमारी जिम्मेवारी है। अभी हमारी जो गुजरात की टीम है वो स्टेज पे आए और हमारे अहोभाग्य है सर कि आपके हाथ से हमें आज सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू कॉल स्टेट टीम ऑन द स्टेज, प्लीज कम एवरीवन। जी आपका क्वेश्चन था, बोलिए सर। आज के इस दौर में रैंडम स्क्रीन प्ले को अडॉप्ट करके उसका रीफ्रेजिंग करके और एबीसी हाउस प्रोडक्शन कर देता है, एक नया चीज बना देता है, तो आप सभी के मुताबिक ये कितना योग्य है आज के इस दौर में? कंटेंट राइटिंग की आपने बात की, क्रिएटिव राइटिंग की बात की, अब स्क्रीन प्ले का रीफ्रेजिंग करके, क्योंकि कॉपीराइट एक्ट कहता है कि रीफ्रेजिंग करने के बाद भी आज कुछ रिसेंट में कुछ डायरेक्टर ऐसे कहते हैं हमने पहले मूवी लिखी, हमने पहले ये मूवी लिखी, तो आप सबके मुताबिक ये कितना सही है? सर इसमें जो आप स्क्रीन प्ले की बात कर रहे हो अभी, इसमें बेसिकली क्या है कि कंटेंट पहले कौन क्रिएट कर रहा है उसके ऊपर सारी डिपेंडेंसी आ जाती है, और क्रिकेट जो आपको कंटेंट आप कर रहे हो उसको आप किस तरीके से उसको प्रिक्योर कर रहे हो उसके ऊपर सारी बात आ जाती है। बाकी टेक्निकलिटीज़ में विशाल भाई इसके ऊपर आपको ज़्यादा इफेक्टिवली बता पाएंगे। सर जावेद अख्तर साहब का नाम तो सुना ही होगा। आज उनकी सारी फिल्में आप देख लो, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, प्लैटिनम जुबली, 25 वीक्स, 50 वीक्स, 75 वीक्स चली है। आज आप एक भी पिक्चर बताओ जो 25 दिन चलती है। सो योर कंटेंट इज व्हाट, कंटेंट इज डेफिनेटली किंग, बट हाउ यू परसीव इट, हाउ यू नर्चर इट, हाउ यू शोकेस इट इज completely in your hands. So today's generation, if you get inspired by something, you should go ahead, write it. Try to be original, get inspired. आज की डेट में 14 फिल्म्स के ही सब्जेक्ट्स पे हज़ारों फिल्में बनती हैं, वही 14 कॉन्सेप्ट्स हैं, उसी के ऊपर फिल्में बनती हैं। आज चाहे आप रोमांटिक बोल दो, चाहे आप एक्शन बोल दो, चाहे आप इंस्पिरेशनल बोल दो, वो कॉन्सेप्ट 14 ही हैं, बट फिर भी साल की 1000 पिक्चरें बनती हैं ना सर। तो उसी हिसाब से आई थिंक ओरिजिनलिटी विल नेवर डाई। हाउ यू परसीव इट, हाउ यू क्रिएट इट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग आउट फॉर। पीयूष सोलंकी, अर्चना सिंह, and please come forward. किसी क्वेश्चंस अगर हैं तो इवेंट के बाद we are here only. We have Anand Like, Doshi we can sir. have, So discussions next post. he will say something. We are here only. We can just have the discussions offline after that. Piyush Solanki is our production head of Gujarat team. I think we should get in touch with Piyush sir also and our Gujarat team for any of the things that you need, any kind of support. Archana we are Singh, also there. she is our media and PR head.
પૂર્વી ત્રિવેદી મીફના મેમ્બર બન્યા અને તમારી પોસ્ટ ગુજરાત જોઈન્ટ સેક્રેટરી. Congratulations. Thank you. तो जैसा मैं बता रहा था, हमने आज जो एक फुटप्रिंट इस्टेब्लिश कर दिया गुजरात में. हम धीरे धीरे करके प्रोग्रेस कर रहे हैं. आप लोगों का सपोर्ट चाहिए. आनंद दोषी जी जो है यहाँ की कंसर्न पर्सन है. आपको कोई भी इशू है, कोई भी चीज़ की आपको दिक्कत आ रही है, कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत आ रही है, आप गुजरात टीम से कनेक्ट कीजिए. लोकली आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड इवेंचुअली अगर आप कोई चीज़ ऐसी सजेस्ट करते Let's हैं call up Anand Doshi, sir. वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं mmiff.in. उस पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. आप उस पे कर सकते हैं. उस पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं एंड इवेंचुअली फिर लोकल टीम सर इज़ ऑन द डाइस. Good evening all. I appreciate all my esteemed guests from Delhi and Mumbai to be part of this seminar, giving their valuable response. I also appreciate Ahmedabad Management Association, Mr. Unmesh Dikshit and his colleagues, supported us as our venue partner. You all friends from industry and media, big thanks for joining us. It has been overall an excellent, successful seminar and we are delighted witnessing it. Our onward journey, AMA will be happy to be part of our esteemed venue partner for workshops and entertainment related activities. Again, thank you all. We invite all attendees to join us for some light refreshment and snacks and some delicious food. Thank you so much. Once again, we thank you for gracing this event with your presence and we look forward for productive and enlightenment evening of discussion and deliberation on the cinematography amendment bill. Thank you. Thank you so much. एक सर का लास्ट क्वेश्चन था. मैं जस्ट एक बार लास्ट क्वेरी सॉल्व कर दूं.